thing This is that conference will now be recorded. this type of webinars, or your alumni association can give students certain suggestions of employment, how to prepare for the different examinations that they can undertake, and many more things they can. So it is a very, very good opportunity. And I once again, thank Dr. Swain that he has organized such a good webinar, and in which he has requested you and you readily agreed to come and join this webinar and deliver a lecture to impress upon the students of the BBMKU and elsewhere also. I think most probably the students of the BBU and others are also associated with it, associated with it. So these are very important things to take care of. And I just give some planning for the college that as an alumni, you should know also that the college has switched over to the digital mode, and it is a leading institution in the Jharkhand in online teaching. Issues are there about the bandwidth of the internet. Poor students are there, those who don't have the mobile smartphones. So issues are there, but still we have to change. We can't go back. Development is a progressive process. As the development is a progressive process, progression has to take place. In that situation, it is required that we will have to keep pace with the technology as well as with the environment. The geologists are best environmentalists because they know the earth. And when one people knows the earth, he knows whole of the environment of the globe. Because if the core of the earth is hottest, that's why the environment is above the ground above. So it is very important. And you people, you know the evolutionary process, you know the core of the earth, and you know the environment of the earth also. So you know the things in totality. Geologists know the animals, botanists know the plants, botany, geology, biology know the plant and animal both and their evolution. But a geologist is a scientist who knows about the earth, evolution of the earth, as well as evolution of the plants and animals both. So they are the complete scientists. They are the true scientists for the earth. They can conserve the earth. They can give messages, right messages, what is happening and what will be the future of the earth. So a geologist's role is very big nowadays, especially when the technology is advancing. Because due to technology, with the technology, not due to technology, but with the technology, we are able to exploit earth like anything. And a geologist only can say that this technology is suitable for exploitation of the resources of the Mother Earth. And this is the finest way. So the role of a geologist is very big. And he or she, the students, those who are listening to this one and who will be listening to you also about the groundwater and all that, which is very important nowadays. The fresh water is very limited, and that's why the conservation of recharging of groundwater is of immense importance. So these are the things which has to be taken care of. And I think with your deliberations, I'm just not going to take much time because the students would like to hear you. And I think I'm seeing over here, there are some 70 plus students are joined over here. So large number of students are present over here in this webinar. So that shows the success of this webinar, that huge number of students are there. So I again congratulate you. Once again, I welcome you, and I hope this will be very, very useful webinar for all the students, those who have joined over here, and those who are not partially, they have
they are listening. Indirectly, they are listening. If it could have been on the Facebook as well as on the YouTube live, I would request Sagar that he should take care of this one, that the webinars of like this magnitude should be organized simultaneously on the that should be live on the Facebook as well as on the um, YouTube of the college, because we have got the channel of the YouTube as well as of the Facebook also. So this can be live on that to both of those social media also, and that can be made more popular. Second, lastly but not the least, I would like to say that this whole of the program must be recorded, and that should be put on the website of the college so that every student is benefited out of it. So once again, I wish you all for this successful webinar, organizing a successful webinar, and it will be a grand success. So once again, welcome you, and with the request that you will be able to discharge or deliver a good lecture to the students, which will benefit them. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Sagar, I have got one request to you. Do you have something to give the speakers, to honor Yes, sir. Yes. speaker? Do you? Yes, sir. Okay, okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. I would now like to introduce our keynote speaker, Mr. Aniket Vishwakarma, who has obtained MSc Tech in Applied Geology from IIT ISM Dhanbad. Afterwards, he joined Coal India as a geologist. Nowadays, he is rendering his service in Central Groundwater Board as a hydrogeologist, Scientist B. He has extensive research experiences over groundwater geology. He is currently working on the project National Aquifer Mapping and Management Program. He is also working on Tapi River Basin Management Plan. Now, without further ado, let us welcome Ankit Vishwakarma, sir. Thank you, Ananya. Am I audible? Yes. Yes, Yeah. you are audible. Yes, yes. Go on, go on. Thank you. So first of all, I'll thank our honorable principal sir, Raj Kishore Sinha sir. So thank you very much for that warm welcome and such a motivational, what you call, thrust to us. So motivational thrust to us. So that alumnus of this college, like me being one of it, and we can associate rest of us who are posted different in different regions of the country and serving different sectors of the government and private sectors also. So that's a very good idea, sir. I think we'll work upon it, and we'll try to associate all our batchmates and all senior officers also who are posted. And I would like to thank our HOD of geology, Dr. Sagar Swenser. I've been knowing him since ISM days, so it's glad to see you as a HOD. Okay, sir. So, and I think the department is doing wonderful work under his, what you call, guidance and his approach. And so all I can say is we have 73 students also joined. So people are now curious, I guess, so to learn about what is groundwater also. Uh, so I would thank once again our principal sir and Sagar Swan sir so to organize this webinar. So thank you very much, sir. So uh, I think I should start now. You can also share your screen also. Yeah, sure, sir. Yeah. Just a bit, sir.
Is it visible? Is the presentation visible, sir? Yeah, it's visible. Yeah, just put on that full screen mode, then Okay, okay. presentation mode. In lower part, in lower, that one option is there to full screen. Full screen, okay. No, in lower portion. In lower portion, right. Right, That lower where portion. 68% is there. Actually, I'm not able to see that. No, that excuse wherever that 68% zoom, nearer to zoom option, that one full screen option is there. If you put on that, sir, extreme right bottom corner, sir. Actually, my screen I is think already you can full, I use guess. the shortcut also. I mean Control F5. I don't remember exactly, but there is a way to make it full screen by using the shortcut, keyboard shortcut. So just click Control plus Enter. So just click Control plus Enter. You can do it. Please go fast. you can proceed. Okay. Now is it visible? Yeah, it's visible. Yeah, fine. Yeah, yeah, it's okay. Yeah. Okay. So I would present this. I think I should go in Hindi. Are you comfortable in Hindi? Most of people are comfortable in Hindi, I guess. Yeah, yeah. Yes, Yeah, sir. sir. Yeah. तो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको। तो एक्चुअली ग्राउंड वाटर हम लोग जो पढ़ते हैं कि ज़मीन में हम लोग बोर बनाते हैं, फिर या फिर डगवेल बनाते हैं, फिर उससे पानी हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये हर कोई इतने आसानी से करता है, उसमें कोई साइंस की ज़रूरत नहीं रहती है। आप कहीं भी बोर बनाओ, कहीं भी डगवेल बनाओ, तो उसमें पानी आ जाता है। और लोग इसके पीछे की साइंस को नहीं ध्यान देते हैं और अनमैन्ड तरीके से, मतलब बिना कुछ सोचे समझे हम उस रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को आज आपके साथ शेयर करना मतलब उचित समझा, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एस्टिमेशन, कि जो ग्राउंड वाटर की रिसोर्स है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है वो हर 3 साल पे इस रिसोर्स को कैलकुलेट करती है। जैसे कि अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो 2017 के हिसाब से है, और इसके बाद 2020 में भी हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया है ऑल ओवर इंडिया बेसिस, और वो अभी पब्लिश होने वाला है, तो कुछ टाइम में वो पब्लिश हो जाएगा।
और उसके पहले हम लोगों ने 2013 में भी किया है, 2009 में किया है। और ये चीज जो प्रोसेस है ये हम लोग 1997 के बाद से स्टार्ट किए हैं एक्चुअली। तो उसके पहले क्या था कि उसके पहले हम लोग बस एक्वीफर मैपिंग करते थे, और लेकिन अब ऐसा है कि हम लोग एक्वीफर मैपिंग के साथ साथ ग्राउंड वाटर रिसोर्स को भी एसेस करते हैं कि कितना हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है। ओके, तो ये जनरलाइज थोड़ा सा आप सबके लिए है कि कितना परसेंट अभी वाटर जो है अर्थ पे। तो आप देख सकते हैं कि जो 96.5% से ज़्यादा वाटर जो है ओशन में है वो खारा पानी है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और उसमें फिर जो फ्रेश वाटर है वो 2.5 के आसपास है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मोस्टली ग्लेशियर्स में है 68.7%, उसको भी आप टैप नहीं कर सकते हैं। और फिर जो बचता है 30%, 30.1% वो ग्राउंड वाटर में आता है, और जो सरफेस वाटर है वो रेस्ट आपका 12% में जा रहा है। ठीक है, तो जो परमाफ्रॉस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी, और सरफेस वाटर का अलग से डिस्ट्रीब्यूशन जो है, तो वो परमाफ्रॉस्ट है, आइस है और लेक्स हैं उसके बाद। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो रिवर्स हैं वहाँ है ये चीज़, और स्वैम्स है, मार्शेस हैं, और बाकी बचा कुचा एटमॉस्फेयर में है। तो एक कंपैरेटिव आपको आइडिया दे रहा है कि आपके पास कितना फ्रेश अवेलेबल वाटर है। तो आप जो देख सकते हैं आपके पास नियरली रिवर में जो वाटर है, और जो आपके पास जो लेक्स में वाटर है, और जो बचा कुचा एटमॉस्फेयर में वाटर है, इसको आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो आप यूज कर सकते हैं। आइस वाली वाटर, फ्रॉस्ट जो पर्मा फ्रॉस्ट है या जो ग्लेशियर्स कैप्स पे है, उसको यूज नहीं कर सकते हैं। सो ये एक सिंपल सा डायग्राम मैंने इंक्लूड किया ताकि ज़्यादा लोगों तक ये आइडिया पहुंच सके। तो ग्राउंड वाटर कहाँ से आता है? पहले बात, हम लोग सब कोई जानते हैं कि नीचे बोर करते हैं हम लोग तो पानी मिलता है, डगवेल बनाते हैं पानी मिलता है, लेकिन वो आता कहाँ से, उसका सोर्स क्या है? सो सबसे मेजर सोर्स है दैट इज प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल। मोस्टली क्या होता है, जो बरसात का पानी होता है, या जो कहीं कहीं जगहों पे आप स्नोफॉल्स बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, वो पानी इनफिल्टर होके जो जमीन में जो पोर्स होते हैं, जो खाली जगह होते हैं, एंगुलर जो स्पेस बोलते हैं, तो उसके थ्रू सीप होके इनफिल्टर होके वो आपके सरफेस के नीचे जो रॉक फॉर्मेशंस है उन तक पहुंचता है। और वो रॉक फॉर्मेशंस फिर उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा टाइम लगता है इस प्रोसेस में कि जो रेनफॉल हुआ वो आपका जाके नीचे जो ग्राउंड वाटर है वो स्टोर हो। इसमें कभी कभी सालों लग जाते हैं, कभी कभी हजारों साल लग जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जिस तेजी से हम लोग ग्राउंड वाटर का दोहन कर रहे हैं, जिस तेजी से हम लोग ग्राउंड वाटर को निकाल रहे हैं, और आने वाले समय में हम लोग सब कोई देख रहे हैं कि अभी चेन्नई 2 साल पहले मतलब 0 डे देख चुका था, साउथ अफ्रीका भी 0 डे देख चुका था ग्राउंड वाटर के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा भय बना हुआ है, डर बना हुआ है कि आने वाले टाइम में कहीं जहां हम रह रहे हैं वहां के वाटर रिसोर्सेज ना खत्म हो जाए। क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया आप देख रहे हैं एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी मतलब कंट्री है, और यहाँ जो सबसे ज़्यादा हमारा जो आउटपुट है एग्रीकल्चर का, मतलब जो वाटर यूजेज है वो ग्राउंड वाटर से सफाइज किया जाता है। मतलब ग्राउंड वाटर मोस्ट केसेस में यूज़ करते हैं लोग एग्रीकल्चर में। तो इसलिए हम लोग को इसका सही से उपयोग करना है, हमको सही से इसको एसेस करना है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हम उसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास पता है कि आपके पास रिसोर्स कम है तो आप उसको और प्लान्ड वे में यूज करोगे, और जब आपके पास बहुत ज्यादा रिसोर्स है तो आप उसको ध्यान नहीं देते हो। आप बोलते हो कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स है, हम अभी इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आने वाला टाइम अभी ऐसा होने वाला है कि आपके रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, हर जगह पानी की किल्लत हो रही है। तो ये हम देख सकते हैं अभी आगे। अच्छा, ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें आप दो चीज देख सकते हैं। पहला जो आपका
एक्स एक्सिस की तरफ आप देख रहे हैं, वो ग्राउंड वाटर की जो बोर हम लोग बनाते हैं या जो डगवेल्स बनाते हैं उसका डेप्थ आप देख सकते हैं, और जो वाई एक्सिस पे है वो आप ईयर देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हरित क्रांति चालू हुई थी, जो कि लगभग आपके लेट 50s से लेट 60s तक चला, और उसके बाद जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है काफी स्ट्रांग हुआ, तो आप देख सकते हो कि पहले 1950s के टाइम जो हमारे डेप्थ हुआ करते थे डगवेल्स के या बोर्स के, वो काफी कम हुआ करते थे। 30 मीटर तक का एवरेज डेप्थ उस टाइम हम लोग देखते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, अभी हम लोग और आगे आ गए 70s में आ गए, तो 70s में क्या हुआ, डग वेल को हम लोग कम यूज करने लगे एज कम्पेयर टू ट्यूबवेल, बोरवेल, और हमारा जो बोरवेल का था ड्रिलिंग, बोरवेल हम ज्यादा बनाने लगे, बोरवेल का पे ज्यादा रिलाई करने लगे, वो बढ़ते गया। तो जो ग्राउंड वाटर था वो करीब अब और नीचे जा रहा था, और हम लोग जो एवरेज डेप्थ अब बना रहे थे वो 100 मीटर के आसपास का बोरवेल हम बनाते थे, ये 70s की बात है। और इसी तरह और समय बीतता गया, और 80s में हम लोगों के पास सबमर्सिबल पंप आने लगे। तो सबमर्सिबल हम लोग क्या करते हैं, अब और ज्यादा दोहन करने लगे पानी का, और ज्यादा वाटर एक्सट्रैक्ट करने लगे। सो जो एवरेज डेप्थ कंस्ट्रक्शन अब होने लगा वो 300 से 400 मीटर का होने लगा। तो मेरी आवाज आ रही है अब तक? आर यू ऑल लिसनिंग? Yes, sir. Yeah, continue. ओके, Yeah, ठीक है। continue. सो जैसे जैसे समय आप देख रहे बढ़ता गया, तो हम लोग जो डिपेंडेंसी है जो हमारी, वो बोर्स पे ज्यादा हो। ओके, सो सबसे पहले ये रिसोर्स समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि एक्विफर क्या है। तो आप लोगों ने सब में बुक में तो पढ़ा ही होगा, डीके टोड है और फेटर, और भी कई सारी किताबें हैं जिसमें आप डेफिनेशंस याद कर रहे हैं। तो डेफिनेशंस अच्छी बात है, आप उसको समझिए, लेकिन आप ये जरूर समझिए कि एक्विफर है क्या। अभी लोग हर रॉक को आप एक्विफर नहीं बुलाते, हर एक रॉक फॉर्मेशन को आप एक्विफर नहीं बुला सकते हैं। एक एक्विफर में जो दो प्रॉपर्टी जो सबसे जरूरी है वो है पोरोसिटी और परमिएबिलिटी। तो कोई भी पोरस फॉर्मेशन, पोरस वो फॉर्मेशन होता है जिसमें जो इंटर ग्रैनुलर स्पेसेस होते हैं वो खाली होते हैं, और परमिएबिलिटी क्या होती है कि उन पोर स्पेसेस की कनेक्टिविटी है, सिंपल भाषा में वो पोर्स आपस में कितने कनेक्टेड हैं, वो आपकी परमिएबिलिटी बताती है। तो ये दो जरूरी चीजें हैं एक्विफर में जो होनी चाहिए, तभी आप उसको एक्विफर बुला सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या है, वो आपको वाटर यील्ड करने दे, मतलब आप उस एक्विफर से पानी एक्सट्रैक्ट कर सको, पानी आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट में पानी निकल सके, सो वो एक्विफर कहलाता है। यहाँ पे मैंने एक जिस्ट में ही आपको ये चारों टाइप के जो रॉक फॉर्मेशंस होते हैं उसका आइडिया दिया है। एक एक्विफर, एक एक्विटार्ड, एक एक्विक्लूड और एक एक्विफ्यूज। तो एक्विफर क्या होता है, पोरस होता है और परमिएबल होता है। इसमें जो इंटरग्रैनुलर स्पेसेस होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, जिसके वजह से वाटर जो है इनमें आराम से स्टोर रहता है, और इंटरकनेक्टेड स्पेसेस होते हैं जिसकी वजह से वाटर इजीली फ्लो कर पाता है। उसके राइट साइड पे आप एक्विटार्ड देख रहे हैं। अब एक्विटार्ड क्या है, एक्विटार्ड आपका एक मिक्स तरह का रॉक फॉर्मेशन हो जाता है जिसमें पोरोसिटी है लेकिन एक्विफर से थोड़ी कम है, और परमिएबिलिटी भी है लेकिन एक्विफर से रिलेटिवली थोड़ी सी कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जो क्या बोलते हैं छोटे तरह, मतलब जो एक्विफर में आप देख रहे हो काफी कोर्स ग्रेन मिलेंगे आपको, और एक्विटार्ड में रिलेटिवली उससे और छोटे क्ले टाइप के थोड़े इंक्लूजन मिलेंगे, या फिर वो मिक्स तरह का होगा। क्योंकि नेचर में क्या होता है, आपको कभी पूरी तरह से एक एक्विफर नहीं कभी दिखेगा, कभी पूरी तरह से एक्विक्लूड नहीं दिखेगा, कभी कभी मिक्स टाइप के भी फॉर्मेशन दिखते हैं, तो वो एक्विटार्ड कहलाता है।
फिर उसके बाद एक्विक्लूड जैसे आप देख सकते हैं क्लेई होता है, मडी होता है काफी। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं वाटर लॉग हुआ है, तो इसका रीजन यही है कि वो क्ले जो है वो पोरस तो बहुत ज्यादा है लेकिन वो परमिएबल नहीं है। वो वाटर बहुत ज्यादा सोख के रख सकता है लेकिन उसको ट्रांसमिट नहीं करता है, उसको यील्ड नहीं करने देता है, सो वो एक्विक्लूड आ जाता है। और जो एक्विफ्यूज है, एक्विफ्यूज आप सब बहुत आसान है, मतलब जो कॉम्पैक्ट और क्रिस्टलाइन तरह के रॉक्स होते हैं या जिसमें इंटरग्रानुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, तो वो सारे एक्विफ्यूज कहलाते हैं। जैसे कि ग्रेनाइट हो सकता है आपका, मार्बल हो सकता है, ये सब सारा आपका एक्विफ्यूज में आता है। एक्विफर में आपके सैंडस्टोन आ जाएंगे, अनकंसोलिडेटेड फॉर्मेशंस आ जाएंगे। एक्विक्लूड में आपके क्ले बेड्स आ जाएंगे, बड़े बड़े शेल के बेड्स आ जाएंगे। और एक्विटार्ड में आपके मिक्स तरह की फॉर्मेशंस होंगी। उसके बाद एक और जरूरी चीज जो है उसमें, तो कन्फाइनिंग एक्विफर्स और अनकन्फाइनिंग एक्विफर्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो कन्फाइनिंग एक्विफर्स क्या होते हैं और अनकन्फाइनिंग एक्विफर्स क्या होते हैं? अगर आप ये डायग्राम देखो तो यहाँ आपको ये सरफेस नजर आ रहा है, ये अनकंसोलिडेटेड फॉर्मेशन है। और पहला जो ग्रे लाइनिंग आप देख रहे हैं ये कन्फाइनिंग बेड है। ये कन्फाइनिंग बेड जो है ये जनरली या तो एक्विटार्ड का होता है या तो एक्विक्लूड का होता है, जो आपको पानी इजीली ट्रांसमिट नहीं करने देता है। जिसके वजह से क्या होता है, ये कन्फाइनिंग बेड के वजह से जब आपका यहाँ पे रेनफॉल होता है ऊपर सरफेस पे, वो पानी इनफिल्टर होके धीरे धीरे सरफेस के नीचे तक जाता है और यहाँ पे स्टोर होता है। अनकन्फाइंड एक्विफर में जो वाटर लेवल बनता है, जो वाटर टेबल जिसको बुलाते हैं, उस जगह पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है जो अंदर फॉर्मेशन में प्रेशर है वहां पे। ये अनकन्फाइंड एक्विफर की बात है। और अगर आप कन्फाइंड एक्विफर की बात करो तो कन्फाइंड एक्विफर उस तरह के एक्विफर फॉर्मेशंस होते हैं, रॉक फॉर्मेशंस होते हैं जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से कन्फाइनिंग बेड से बाउंडेड होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक ऊपर पहला ग्रे कलर का एक्विक्लूड लेयर है और नीचे आपके एक और एक्विक्लूड लेयर है। तो इन दोनों के बीच वो कन्फाइंड है, इस वजह से उसको कन्फाइंड एक्विफर बोलते हैं। और कन्फाइंड एक्विफर में क्या होता है कि आपका जो वाटर होता है वो कहीं दूर से रिचार्ज होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे देख रहे हैं, ये उसका रिचार्ज एरिया होता है जहाँ से वाटर रिचार्ज होके धीरे धीरे इस कन्फाइनिंग बेड तक आता है। और ये काफी लंबा प्रोसेस है, अगर आप कंपेयर करने जाओ तो इसमें सालों लग सकते हैं रिचार्ज एरिया में। और यहाँ पे आप दो तीन चीजें और देख सकते हो, जैसे जो कन्फाइंड अनकन्फाइंड एक्विफर में जो वाटर जहाँ पे रेस्ट करता है, जहाँ पे आके वो स्टेबल रहता है, उसको हम लोग वाटर टेबल बुलाते हैं। और जो कन्फाइनिंग एक्विफर में अब जब बोर बनाओगे तो वाटर उस कन्फाइनिंग बेड के काफी ऊपर तक आ जाता है, क्योंकि यहाँ अंदर वाटर प्रेशर में है, इस वजह से वो काफी सरफेस के ऊपर तक भी आ सकता है। कभी कभी अगर वो लो लाइंग एरिया हो तो उस कंडीशन में हम उसको आर्टिशियन वेल बुला देते हैं। अगर वो आपके कन्फाइनिंग बेड से ऊपर दिखता है तो इसको आप पिज़ोमेट्रिक सरफेस बुलाते हैं। तो ये एक जनरलाइज आइडिया है कन्फाइंड एक्विफर्स और अनकन्फाइंड एक्विफर्स के बारे में। जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं CGWB ने क्या किया है। CGWB ने अभी तक काफी सारी एक्विफर्स की मैपिंग कर ली है इंडिया में, जो कि 1:250,000 के स्केल पे हो चुका है। और ये 2012 में CGWB ने किया है, जिसमें मेजर 14 प्रिंसिपल एक्विफर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आगे। और इसमें 42 मेजर एक्विफर्स इंक्लूडेड हैं जो उसके सब टाइप्स हैं। तो प्रिंसिपल एक्विफर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 14 प्रिंसिपल एक्विफर्स आप इंडिया में देख रहे हैं। सबसे पहला आप देख रहे हैं अलुवियम। तो ये अलुवियम जो है वो आपके रिवर के डिपॉजिट्स हैं या तो फिर आपके एओलियन डिपॉजिट्स हैं, जो आपको पूरे
नॉर्थ इंडिया में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, और इधर आप देख सकते हो बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सब जगहों पे आपको अलूवियम फॉर्मेशंस एक्वीफर के दिखते हैं। उसके बाद आप ब्रह्मपुत्रा में देख सकते हो, और इसके अलावा जितने भी रिवर्स हैं इंडिया में, हर रिवर के जो बेसिन है उसमें आपको रिवर की प्रॉक्सिमिटी जो बोलते हैं, वहां पे आपको अलूवियम के फॉर्मेशंस के एक्वीफर दिखते हैं और मिलते हैं। तो ये आप एक जनरलाइज अलूवियम का देख रहे हो। उसके बाद नीचे क्या है, लेटराइट। उसके बाद लेटराइट डिपॉजिट्स आप देख सकते हो यहाँ पे आपको, अगर थोड़ा मैं जूम इन कर पाऊं, ओके, तो लेटराइट डिपॉजिट्स आप देख सकते हो यहाँ पे रांची के पास जो हमारा एरिया है, यहाँ पे आपको जो ये मेरे ख्याल से पुरुलिया एरिया आएगा, वहाँ पे आपको लेटराइट डिपॉजिट्स मिलते हैं। यहाँ पे कुछ वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पे आपको लेटराइट फॉर्मेशंस के एक्वीफर दिखते हैं। उसी तरह अगर आप कोस्टल एरियाज में जाओ तो ये गोवा और महाराष्ट्र के एरियाज में आपको लेटराइट जो फॉर्मेशंस है वो आपके मेजर एक्वीफर्स आपको दिखते हैं। अगला जो है वो है फिर बसॉल्ट के एक्वीफर्स। ये अलग अलग सब रॉक टाइप्स हैं जिसको हम लोग एक्वीफर कंसिडर किए हैं और इसका मैप्स प्रिपेयर किया गया है। सो बसॉल्ट के एक्वीफर्स आप कहाँ देखोगे, जो डेक्कन बसॉल्ट आप सब लोग ने पढ़ा होगा, तो वो डेक्कन बसॉल्ट आपका ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, सो इन फॉर्मेशंस, इन जगहों पे आपको बसॉल्ट के एक्वीफर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो ये हार्ड रॉक फॉर्मेशंस होते हैं, हार्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, लेकिन ये बसॉल्ट जो है अगर इसमें फ्रैक्चरिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्स हैं, तो उस वजह से ये बहुत अच्छे एक्वीफर्स बनते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आप देखो तो आप सुनते होंगे कि फार्मर्स ने जान दे दिया, पानी नहीं है, तो मेजर रीजन यही होता है वहाँ पे कि उनको उतना आउटपुट नहीं मिलता उस एक्वीफर से, क्योंकि जो हार्ड रॉक फॉर्मेशंस है वो बस फ्रैक्चर जब उनमें होगी तभी वो वाटर बियर कर पाएंगे। अगर वो कॉम्पैक्ट होंगे, हार्ड होंगे, तो वो फिर एक्वीफ्यूज की तरह काम करेंगे, वो एक्वीफर्स आपके नहीं कहलाएंगे। सो इसीलिए ये मेजर इशू रहता है, आप सुने होंगे। और अगर आप देखो तो फिर उसके बाद अगला सैंडस्टोन फॉर्मेशंस है। तो सैंडस्टोन फॉर्मेशन में क्या क्या आ जाएंगे, आपके जो गोंडवाना के फॉर्मेशंस हैं यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो झारखंड के पास यहाँ पे एक लीनियर पैच जो आपका गोंडवाना सेडिमेंट्स का है, ये आपका सैंडस्टोन फॉर्मेशन है। उसके अलावा जो आप विंध्यन के सैंडस्टोन्स हैं, रेवा और क्या, जैसे थोड़ा सा मैं स्ट्रैटिग्राफी में अगर चूक रहा हूँ तो मुझे माफ कीजिएगा, जो भांडर फॉर्मेशंस हैं, और उसके अलावा जो और भी जो सैंडस्टोन्स हैं वो सारे आपको मिलेंगे सैंडस्टोन फॉर्मेशन पे। ये आप गोदावरी के पास यहाँ देख सकते हैं, ये सारे सैंडस्टोन फॉर्मेशंस है। उसी तरह आप यहाँ पे अगर गुजरात की बात करो तो गुजरात में जो भुज सैंडस्टोन है वो आपके सैंडस्टोन के एक्वीफर्स हैं सारे। उसके बाद शेल के एक्वीफर्स, अब देखिए शेल क्या है, शेल कोई एक्वीफर नहीं है, लेकिन जहाँ पे ये अब डोमिनेंट तरह से लिथोलॉजी प्रेजेंट है वहाँ पे एज एन ऑप्शन आपको यही एक्वीफर मिलते हैं, क्योंकि जो जगह पे आप डोमिनेंट शेल मिल रहा है आप वहाँ पे नहीं, मतलब आपको उतना आउटपुट नहीं मिलेगा पानी का, लेकिन क्या करें, अब नेचर ने ऐसा बनाया है कि अब वही हमारे एक्वीफर्स, उसको हम लोग को कंसिडर करना पड़ता है। फिर लाइमस्टोन के जो फॉर्मेशंस हैं, लाइमस्टोन आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे गोवा के पास काफी सारे लाइमस्टोन के फॉर्मेशंस हैं जो आपको देते हैं वाटर। उसके अलावा फिर यहाँ गुजरात में कुछ एरियाज है, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं बागवेड और लामेटा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा शायद। तो ये सारे लाइमस्टोन फॉर्मेशंस हैं जो कि एज एन एक्वीफर काम करते हैं। फिर यहाँ रायपुर के पास यहाँ पे भी कुछ लाइमस्टोन के फॉर्मेशंस हैं। सो ये आपके एक्वीफर्स काम करते हैं। अच्छा, लाइमस्टोन में देखिए दो तरह के अब लाइमस्टोन में आ जाते हैं। लाइमस्टोन अगर कम्पैक्ट है वो, तो वो बहुत बेकार, मतलब बहुत कम यील्ड करेगा पानी, ठीक है। लेकिन अगर वो मीलियोलिटिक लाइमस्टोन है या फिर उस लाइमस्टोन में केविंग हो गई है या पोर स्पेसेस काफी बड़े डेवलप हो गए हैं, सो उस केस में वो बहुत अच्छा एक्वीफर बनता है। सो लाइमस्टोन की एक खासियत है। और फिर आप ग्रेनाइट के एक्वीफर देख सकते हो अलग अलग जहाँ पे ग्रेनाइट्स है, जैसे कि आप यहाँ पे अरावली में देख रहे हो कि कुछ ग्रेनाइट के फॉर्मेशंस हैं। फिर आप यहाँ पे रायपुर के पास जो बस्तर क्रेटोन के पास, वहाँ पे कुछ ग्रेनाइट के फॉर्मेशंस हैं। सो ये सारे ग्रेनाइट जो फॉर्मेशंस है, अगर वो कॉम्पैक्ट है, सिमिलर जैसे मैं लाइमस्टोन के लिए बोला, अगर वो कॉम्पैक्ट है, मैसिव है काफी, तो वो काफी पुअर एक्वीफर्स कहलाएंगे। लेकिन अगर उसमें वेदरिंग बहुत ज्यादा हो, ये बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्स है, बहुत ज्यादा जॉइंट्स है,
तो उसकी वजह से वो बहुत अच्छा एक्विफर होता है। उसी तरह सिस्ट फॉर्मेशन है, सिस्ट फॉर्मेशन भी आपको काफी जगह मिल रहा है। जैसे यहाँ पे आप कडप्पा बेसिन में देखो तो इस तरह पे आपको सिस्ट फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपके धरवार पैटर्न में भी कुछ सिस्ट फॉर्मेशन है, यहाँ पे अरावली फॉर्मेशन में सिस्ट है। तो यहाँ पे फिर हमारे जो सिंगुम प्लेटोन जोन के पास है वहाँ पे भी काफी सिस्ट फॉर्मेशन है। तो ये सारे सिस्ट फॉर्मेशन भी आपके जो है वो एक्विफर्स बनाते हैं। उसके बाद और आपकी जो क्वार्टजाइट फॉर्मेशन है काफी इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जो हमारा जो ईस्टर्न घाट जो है उसमें चार्नोकाइट और खोंडोलाइट आप देख सकते हैं जो कि उड़ीसा के रीजन में और आपको आंध्रा के रीजन्स में मिलता है। तो ये सारे एक्विफर्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद नाइसिस भी है, काफी अच्छे आपके एक्विफर डिस्ट्रीब्यूशन है जो साउथ इंडिया में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके जो नाइसिक फॉर्मेशंस है, यहाँ पे फिर आपके रांची के पास नाइसिक फॉर्मेशंस है। तो ये सारे एक्विफर्स आप देख सकते हैं। बैंडिट नेसिक कॉम्प्लेक्स जो कि हमारे झारखंड में है, रांची और जो धनबाद का पार्ट है, ठीक है, ओके। ये एक और थोड़ा डायग्राम आप देख सकते हैं, अनकंसोलिडेटेड सैंड सिल्ट ग्रेवल पेबल। ये आपका जो है मैं बता रहा था लूज सेडिमेंट्स है जो आपको बेसिन्स के पास मिलेंगे, सारे रिवर बेसिन्स के पास। यहाँ पे आप जैसे साबरमती बेसिन गुजरात में है, उस तरह से फिर ये जो आपका एयोलिन डिपॉजिट है राजस्थान में वो है, फिर यहाँ पे इंडो गंजेटिक प्लेन जो है वो है, यहाँ ब्रह्मपुत्रा बेसिन है। इस तरह से सारे रिवर बेसिन्स में आपको अनकंसोलिडेटेड सैंड सिल्ट ग्रेवल पेबल इस तरह के एक्विफर दिखेंगे। फिर डेक्कन बेसाल्ट आप ग्रीन ब्राइट कलर में देख सकते हो। सेमी कंसोलिडेटेड एक्विफर ये हैं जो सैंडस्टोन्स वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे सैंडस्टोन शेल के देख सकते हैं जो आपको गोंडवाना में है या फिर आपके विंध्यन में है, ठीक है। और फिर आपके कंसोलिडेटेड इग्नेस एक्विफर्स हैं जो आपको जो इंट्रूजन्स हैं वो सारे आपके देखने को मिलते हैं। सो ये तो आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि CGWB डेटा कहाँ से लाता है ये रिसोर्स एस्टिमेशन के लिए। जैसे GSI बोर्ड बनाती है, GSI में आप कोर ड्रिलिंग देखते होंगे, कोर ड्रिलिंग होता है, वो कोर बाहर फिर आप निकाल के उसको एनालाइज करते हो कि वो कौन सा रॉक है, उसकी सैम्पलिंग करते हो। उसी तरह CGWB क्या करती है, CGWB एक्सप्लोरेटरी वेल्स बनाती है। अब एक्सप्लोरेटरी वेल्स क्या है, ये नॉर्मल वेल ही होते हैं जैसे आप अपने घर पे वेल बनाते हो, बोरवेल बनाते हो, ट्यूबवेल बनाते हो, ये उसी तरह के वेल्स होते हैं, लेकिन इसमें हम स्पेसिफिक एक्विफर को टैप करते हैं। जैसे कि आप कंसिडर करो अगर आप धनबाद में बोर बना रहे हो और आप गोविंदपुर के साइड अगर आप बोर बना रहे हो, सो वहां पे जो आपको फॉर्मेशन मिलेगा वो आपको नाइसिक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, छोटा नागपुर नाइसिक कॉम्प्लेक्स। सो वो उस फॉर्मेशन में आप जब बोर बनाओगे तो फ्रैक्चर्स जो हैं वहां से आपको पानी मिलता है। लेकिन वही अगर आप बिहार चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, या आप इंडो गैंजेटिक प्लेन में कहीं बनाओ, या फिर आप बंगाल में कोलकाता के पास कहीं बोर बनाओ, सो उन केसेस में क्या होता है, आप लूज अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स को टैप करते हो, जो कि नेचर में क्या होते हैं कि स्टैकिंग होती है उनकी। जैसे आपको कहीं पूरी तरह से एक्विफर आपको नहीं मिलेगा, आप ऊपर से ड्रिलिंग करना चालू किया, आप अगर डेप्थ वाइज नीचे जाओ तो हो सकता है आपको 100 मीटर तक आपको सैंड मिले, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, एक एक्विक्लूड आ जाता है या एक एक्विटार्ड आता है जो सेपरेट करता है नीचे एक और एक्विफर को, जैसा कि मैं कन्फाइंड और अनकन्फाइंड के बारे में बता रहा था। सो नेचर में ऐसा बहुत प्रेवलेंट है। जो आप इंडो गैंजेटिक प्लेन देख लो या जो आपका गुजरात में जो प्लेन्स है वहां देख लो, तो ऐसा सिस्टम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक एक्विफर को ही टैप करते हैं। अगर आप फ्रियाटिक एक्विफर को टैप कर रहे हैं तो वो बस फ्रियाटिक का ही वेल बनाएंगे 100 मीटर, जो एक जनरल उस जगह पे डेप्थ होती है। अगर आप कन्फाइनिंग एक्विफर को टैप कर रहे हैं तो आप थोड़ी डीपर बनाओगे और बस आप कन्फाइनिंग बेड को ही कन्फाइंड एक्विफर को ही टैप करोगे। उस केस में क्या करते हैं हम लोग, ऊपर से जब तक उस कन्फाइनिंग बेड तक जाते हैं तब उसको सील करके रखते हैं, मतलब ब्लैंक पाइप रखते हैं, और जिस एक्विफर को हमको टैप करना है वहां पे हम स्लॉट्स लगाते हैं, जाली जिसको बोलते हैं, वो स्लॉट्स को लगाते हैं ताकि बस वही जोन को हम टैप कर सकें। तो CGWB ने काफी सारे एक्सप्लोरेटरी वेल्स बनाए हैं इंडिया में और अब भी बना रहे हैं,
जो एक्वीफर्स को हम लोग टैप करके उसकी डेटा निकालते हैं। अब डेटा में बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक अलग ही टॉपिक्स हो जाएंगे डिस्कशन के। इतना आप समझ लीजिए, उसमें हम लोग जो एक्वीफर्स हैं उसकी हम लोग वाटर लेवल देखते हैं, उसके हम लोग ट्रांसमिटिविटी देखते हैं, स्टोरेटिविटी देखते हैं, ये सब डेटा हम लोग एक्सप्लोरेटरी वेल से निकालते हैं। उसके बाद उसी तरह ऑब्जर्वेशन वेल्स बनाती हैं। तो CGWB हर एक एक्सप्लोरेटरी वेल जो बनाती है उसके साथ एक ऑब्जर्वेशन वेल भी बनाती है। सो ये ऑब्जर्वेशन वेल्स क्या होते हैं, ये सिमिलर डेप्थ के जैसे आप एक्सप्लोरेटरी वेल बनाए, सपोज कीजिए आपने 100 मीटर का एक्सप्लोरेटरी वेल बनाया है, सो आप उसी डेप्थ का 100 मीटर का ही एक और वेल बनाएंगे जिसे आप ऑब्जर्वेशन वेल बोलेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है जो एक्सप्लोरेटरी वेल होता है, जो EW बोलते हैं हम लोग, वो आपका ज्यादा डायमीटर का होता है, वो 10 इंच तक के डायमीटर का होता है, जिससे आप पानी कंटिन्यूसली निकाल सको। और जो OW का जो वेल होता है वो काफी छोटा पतला सा वेल होता है, 6 इंच का होता है, जिसमें आप पंप नहीं डाल सकते हो, और इसीलिए उसको ऑब्जर्वेशन वेल कहा जाता है। उससे आप बस वाटर लेवल की रीडिंग लेते हो और उससे आप अपना जो स्टडी है आगे करते हो। सो एक्सप्लोरेशन का एक्सप्लोरेटरी वेल हो गया और उसके साथ एक ऑब्जर्वेशन के लिए ऑब्जर्वेटरी वेल हो गया। ये दो तरह के वेल CGWB बनाती है, और आप देख रहे हैं कि इंडिया में लगभग हर जगह आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने काम किया है। उसी तरह अब ये वाटर टेबल एलिवेशन मैप्स हैं। तो वाटर टेबल एलिवेशन क्या होती है, सपोज आपने 100 मीटर का वेल बनाया और उसमें आपको वाटर जो टच होता है, जो वाटर आके स्टैग्नेंट रुक जाता है, तो वो कंसिडर कीजिए आपका 10 मीटर पे है, ठीक है। और जो आपका जो RL बोलते हैं, जो आपकी जो अल्टीट्यूड है उस जगह की जो रिड्यूस लेवल है, वो सपोज 5 मीटर है, तो इस केस में क्या होता है, आप वो 5 मीटर जो है और 10 मीटर उसको घटा के आप जो वाटर टेबल बनेगा वो आपके मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में बनेगा, दैट विल बी अराउंड 5 मीटर, ठीक है। तो दो चीज होती है, एक डेप्थ टू वाटर होता है और एक वाटर टेबल होता है। डेप्थ टू वाटर क्या होता है, सरफेस से वाटर कितने नीचे है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ वाटर, और एक वाटर टेबल मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में बनाया जाता है। सो वाटर टेबल से आप वाटर की फ्लो डायरेक्शन बता सकते हो। जैसे नॉर्मली आप देखे होंगे पहाड़ से पानी कैसे बह के नीचे प्लेन तक आता है, सिमिलर कंसेप्ट है, जहां वाटर टेबल जो है वो हायर है, हाई वैल्यूज हैं, वहां से पानी बह के लोअर वैल्यूज तक आता है। तो ये आप पूरी इंडिया की वाटर टेबल मैप्स देख सकते हो जो यहाँ पे शो किया जा रहा है। इसमें आप ड्रेनेज डायरेक्शन भी दिख सकता है, अगर आप जूम करो तो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ जूम करके आपको। ये यहाँ जैसे आप झारखंड वाले एरिया में देखो अगर, सो जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे एलिवेशंस आपको 600 के आसपास दिख रहे हैं। फिर जैसे ही आप इधर जाओ, ईस्टर्न साइड जाओ टुवर्ड्स बांग्लादेश, अगर आप देखो तो ये फ्लो डायरेक्शन बताया जा रहा है यहाँ पे टुवर्ड्स ईस्ट। सो ये जनरल फ्लो डायरेक्शन है इन बंगाल एंड झारखंड। उसी तरह अगर आप यहाँ पे देखो इंडो गैंजेटिक प्लेन में, सो जैसे ही आप हायर इधर देखो पंजाब के साइड, तो यहाँ पे हायर एलिवेशंस आपको दिख रहे हैं 240 220। सो इसी तरह वाटर यहाँ से फ्लो करके इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के थ्रू इधर आता है। उसी तरह और भी आप जैसे अगर गुजरात में देखो तो गुजरात में भी ये अरावली पोर्शंस हैं, तो बहते हुए या तो ये गल्फ ऑफ कच्छ या खम्बट के कच्छ में जाता है। तो इस तरह से आप वाटर टेबल के कॉन्टूर्स देख सकते हो। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे है यील्ड पोटेंशियल। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पेसिफिक यील्ड के बारे में। स्पेसिफिक यील्ड ये जो है आप कितना अमाउंट ऑफ वाटर निकाल पा रहे हो उस एक्वीफर से, उसके टोटल वेट के वॉल्यूम के हिसाब से, वो आप स्पेसिफिक यील्ड आप पढ़े होंगे। स्पेसिफिक पोटेंशियल एक और चीज है। स्पेसिफिक पोटेंशियल यहाँ पे उसमें हम क्या करते हैं, हर सेकंड में आप कितना डिस्चार्ज निकाल रहे हैं वो हो जाता है यील्ड पोटेंशियल। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे जूम इन करके दिखाता हूँ फिर से मैं, यहाँ पे आपको 4 तरह के यील्ड पोटेंशियल्स में मैप किया हुआ है ये एरिया। तो लेस देन 1 जो है वो काफी पुअर एक्वीफर्स हैं, उसमें कोई हैचिंग मार्क्स नहीं है।
फिर जो कम है उसके बाद 1 से लेकर 25। LPS क्या होता है? लीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड में कितने लीटर पानी आप उस बोर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, दैट इज LPS, लीटर पर सेकेंड। तो 1 से 25, फिर उसके बाद 25 से 40 है, और फिर मोर देन 40 है। सो अगर आप देखो तो मेजर पार्ट ऑफ इंडिया आप जो देख रहे हो, जो साउदर्न इंडिया है, जो हार्ड रॉक पोर्शंस हैं या फिर जो सैंडस्टोन की फॉर्मेशंस हैं, इन सब में मैक्सिमम में आपको जो यील्ड पोटेंशियल है वो कम है, दैट इज 1 to 25 लीटर्स पर सेकेंड। सो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में आपको इस तरह के एक्विफर्स हैं जिनका यील्ड पोटेंशियल कम है। लेकिन आपके जो हाई पोटेंशियल वाले एक्विफर्स हैं, जो कि 25 लीटर पर सेकेंड से 40 लीटर पर सेकेंड के हैं, वो आपको देखने को कहीं कहीं मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो झारखंड के पास जो अलाइन बॉर्डर है उस जगह पे आप देख सकते हैं, या फिर कहीं कहीं कोस्टल एरियाज में जैसे ये चेन्नई वाला है वो देख सकते हैं। और जो मोर देन 40 जो बहुत अच्छे एक्विफर्स हैं, लीटर पर 40 लीटर पर सेकेंड से ज्यादा वाले, वो आपको मिल रहे हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन में, और इधर पे आप देख सकते हैं। सो ये यील्ड पोटेंशियल भी और एक जरूरी चीज है जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं। सो उसके पहले एक और चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्विफर सिस्टम जो है अलूवियम एक्विफर्स, ये आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया, अलूवियम एक्विफर्स आपको जो रिवर बेड्स हैं, जो आपके रिवर के वैली फिल्स हैं, उन जगहों पे आपको अलूवियम एक्विफर्स मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये दामोदर रिवर होगा शायद, और उसके वैली फिल्स में आपको कुछ एक्विफर्स जो है वो अलूवियम एक्विफर्स वो देखने को मिलते हैं। उसी तरह इंडो गैंजेटिक प्लेन है यहाँ पे, वो वहाँ पे देख सकते हैं आप। इधर आप आसाम में देखो तो गुवाहाटी की जो जो ब्रह्मपुत्र की जो बेसिन है उसकी में देख सकते हो आप, ठीक है। ओके, एक और मैप ये मैं दिखाना चाहूँ, ये सारे मैप्स CGWB ने बनाए हैं और ये सारे अवेलेबल हैं वेबसाइट पे। अगर आप लोग कोई इन मैप्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, या फिर मैं गौरव को ये सारे पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, ताकि आप सब इसको देख पाओ और इससे डेटा कुछ गेन कर पाओ, कुछ नॉलेज गेन कर पाओ। यहाँ पे आप देखो, जैसे ये अलूवियम एरिया दिखा रहे हैं बंगाल के पास, तो इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो डॉट ट्राइंगल्स हैं, ये CGWB के प्रिजोमीटर्स हैं या ऑब्जर्वेशन वेल हैं जो इन्होंने बनाए हैं, जो हम लोग स्टडी करने के लिए रखते हैं। और उसी तरह यहाँ पे आप वाटर टेबल के कॉन्टूर्स भी देख सकते हो जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और उसके बाद मैं अपना फोकस आपको झारखंड और वेस्ट बंगाल रीजन पे ही रखा हूँ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स सब जो जूनियर्स हैं हमारे, वो थोड़े से एक्टिवली इसको समझ पाए, क्योंकि बसॉल्ट और बाकी सारे एक्विफर सिस्टम्स आपके भी उतने समझ में भी नहीं आएगा, या फिर आप हो सकता है उसको उतने इंटरेस्ट से ना लो जो आपका लोकल एरिया है उसके रिस्पेक्ट से। सो इसीलिए मैंने सारे जो झारखंड और वेस्ट बंगाल के रीजन्स में जो सारे एक्विफर्स है उसका थोड़ा सा दिखाया है यहाँ पे। सो ये बैंडेड नीसिक कॉम्प्लेक्स वाले फॉर्मेशंस हैं, ये आप देख सकते हो, ये झारखंड में मोस्टली आपके हैं। जो हमारा एरिया है झारखंड का वो बैंडेड नीसिक कॉम्प्लेक्स का, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे फॉर्मेशंस एक्विफर्स के। उसके अलावा साउथ इंडिया में भी आप देख सकते हैं, ये जो थरवार पैटर्न इन सब जगहों पे है, ये बैंडेड नीसिक वाले एक्विफर्स। ये मैप थोड़ा इसमें वाटर टेबल कॉन्टूर्स बनाए हुए जैसे आप देख सकते हैं, सॉरी ये वाटर टेबल कॉन्टूर्स नहीं, ये आपके जो EC इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बुलाते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे आप एक मार्क देख रहे हैं, इस जगह पे आप देख पा रहे हैं, आप कर्सर देख पा रहे हैं क्या? Yes. कर्सर आपको दिख रहा है? Yes, we can see it. ओके ओके। Yes. तो ये पोर्शन अगर आप देखो तो यहाँ पे 2200 ये एक मार्क लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इस जगह की, यानी उस जगह का खारापन कितना है, TDS जो हम बोलते हैं, तो वो एक फैक्टर होता है। आप जो EC है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 0.64 से, सो वो आपको उस जगह का TDS बताएगा। सो अगर आप एक सेकेंड, ओके, सो यहाँ का जो
इस जगह का जो TDS आएगा दैट विल बी अराउंड 1440 के आसपास यहाँ पे आपको TDS मिलेगा, मतलब इस जगह पे आपको खारा पानी मिलेगा। लेकिन अगर आप देखो तो इधर थोड़ा सा आपको फ्रेश पानी मिलते जा रहा है और ये पैच जो है आपको थोड़ा फ्रेश पानी का मिलेगा। तो ये सारे स्टडीज CGWB ने किए हुए हैं। अपने जो डेटा पॉइंट्स है, जो आप ट्राइंगल्स देख रहे हो या जो सर्कल्स देख रहे हो, ये सारे हमारे वेल्स हैं, ऑब्जर्वेशन वेल्स हैं, जिनसे हम लोग ये डेटा एक्सट्रैक्ट किए हैं। सैंडस्टोन वाले फॉर्मेशंस आपको फिर से कहाँ मिले? सैंडस्टोन के फॉर्मेशंस आपको जो गोंडवाना बेसिन के हमारे सैंडस्टोन्स हैं वहाँ मिल रहे हैं, या फिर जो विंध्यन के सैंडस्टोन्स हैं वो हैं। ये सारे आपके सैंडस्टोन फॉर्मेशंस हैं, ठीक है। उसी तरह सिस्ट वाले एक्विफर सिस्टम्स कहाँ हैं? सिस्ट वाले एक्विफर सिस्टम्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे रांची जो ये सिंगुम का जोन है, सिंगुम शेयर जोन के आसपास, वहाँ पे आपको सिस्ट फॉर्मेशंस मिलते हैं जो कि एज ए एक्विफर ट्रीट करते हैं। और लेटराइट जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको पुरुलिया और जो साउदर्न पार्ट्स है, कुछ साउथ ईस्ट वेस्टर्न पार्ट्स है वेस्ट बंगाल के, वहाँ आपको लेटराइट में भी एक्विफर्स मिलते हैं। अच्छा, ये मैप स्पेसिफिकली धनबाद डिस्ट्रिक्ट का है, अगर आप देख सको। ये हमारे पटना में एक रीजन है CGWB का, उसके द्वारा बनाया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे लिथोलॉजीज यहाँ पे हैं। गोंडवाना के सेडिमेंट्स जो हैं वो ऐसा दिखाए हुए हैं, निसिक कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो इस तरह से दिखाए हुए हैं, और जो लिनियामेंट्स है वो आपको लाइंस में शो किए गए हैं, ठीक। यहाँ जो NNHS है वो हमारे मॉनिटरिंग स्टेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल हाइड्रोग्राफ स्टेशंस। ये वो सारे NHS वाले वेल्स हैं। ये आइसोहेड्रल कॉन्टूर्स हैं। यहाँ पे ये बोरवेल की डेप्थ, जो डीपर बोरवेल है वो ग्रीन में है, जो शैलो है वो रेड में है। सो उसके बाद यहाँ पे जो यील्ड प्रोस्पेक्ट है वो बताया हुआ है और लिमिटेड प्रोस्पेक्ट्स बताए हुए हैं। अगर आप मैप में देखो ये आपका जो है वो गोंडवाना का एरिया हो गया, ये आपके होल बेयरिंग सैंडस्टोन फॉर्मेशंस हैं, ये वो फॉर्मेशंस हो गया आपके। उसी तरह इधर आप निरसा की तरफ देखो तो जो एरिया है ये भी आपका गोंडवाना का है, जो मुगमा और चिरकुंडा और वेस्ट बंगाल से अलाइंड जो एरियाज है वो सारे आपके गोंडवाना वाले हैं। इनमें अगर आप देखो तो जो एक्विफर्स हैं वो आपके बनाए गए हैं। बोरवेल जो आप देखो ये शैलो तरह के बोरवेल्स इसमें बने हैं, यहाँ पे ये शैलो, यहाँ पे कुछ शैलो एक्विफर्स है। लेकिन इधर अगर आप देखो गोविंदपुर में, तो इन जगहों पे आपके जो एक्विफर्स को टैप किया है उन्होंने डीपर एक्विफर्स को टैप किया है। बोरवेल जो है वो डीपर एक्विफर्स को टैप किया है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लिनियामेंट्स जो हैं आपके यहाँ पे जो फ्रैक्चर्स है, आप इसकी अलाइनमेंट को देखो तो उस जगह पे आपको डीपर एक्विफर्स भी मिलते हैं, क्योंकि ज्यादा उसमें फ्रैक्चरिंग्स बहुत ज्यादा हुई है। और लेकिन अगर आप इधर देखो तो जो क्वालिटी रीजन है, जो आपका गोंडवाना का जो एरिया है उसमें थोड़ा सा, क्योंकि कोल होने की वजह से वाटर क्वालिटी में थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, इस वजह से वहाँ पे ज्यादा डीपर टैप नहीं करते हैं। वो हम लोग बस फ्रियाटिक जोन को, जो अपर अनकन्फाइंड जोन है, बस उसमें यूजुअली टैप करते हैं। उस तरह से आप देखो यहाँ पे कॉन्टूर्स भी बने हुए हैं जो कि आपको फ्लो डायरेक्शंस बता रहा है। अगर आप तोपचापची में देखो तो यहाँ की जो है वो 1400 बता रही है और धीरे धीरे यहाँ पे घटते हुए 1300 तक वापस दिखा रहा है। अच्छा, रिसोर्स एस्टिमेशन में एक और जरूरी चीज जो है वो है रेनफॉल पैटर्न जो है इंडिया का। वो अगर आप यहाँ पे इसको देखो, इस मैप को, इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन वाले एरियाज है ये वो एरियाज है जहाँ पे रेनफॉल काफी अच्छा होता है। और जो इस ईयर के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो इस ईयर में आपको साउथ इंडिया में थोड़ी रिलेटिवली कम रेनफॉल हुई थी, इस वजह से डेफिशिट यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये 2016 का डेटा है अगर आप देखो, क्योंकि 2017 में रिसोर्स जनरेट किया गया था, इसीलिए 2016 के डेटा के बेसिस पे रिसोर्स बनाया जाता है। अगर आप झारखंड में देखो तो यहाँ पे 1296 mm की रेनफॉल है
वही आप अगर गुजरात में कंसिडर करो तो गुजरात में वहाँ पे 511 mm की रेनफॉल है। सो ये जो फैक्टर है रेनफॉल का, कितनी mm रेनफॉल हो रही है, वो काफी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के लिए। जो एरियाज आपके अच्छा रेनफॉल होती है वहाँ पे आप पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ज्यादा रिचार्ज होगा, ठीक है। और जो इंटेंसिटी है वो भी काफी मैटर करता है। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि अभी आप पहले आपको जो रेनफॉल होता था वो 3 महीने तक कंटिन्यू हो, मतलब थोड़ी अमाउंट में होता था लेकिन 3 महीने तक रहता था। अभी क्या हो रहा है कि जो इंटेंसिटी है वो बढ़ते जा रही है। आपके हर 2 हफ्ते या 1 हफ्ते में बारिश होती है और इतनी ज्यादा बारिश होती है कि वो आप रन ऑफ में चला जाता है, मतलब आप ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर पाते हैं उससे। तो ये हमारा क्लाइमेट अभी जिस तरह से हम लोग उसको बदल रहे हैं, तो इसका एक इफेक्ट पड़ रहा है ग्राउंड वाटर पे, जो कि आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा अगर हम लोगों ने कंजर्वेशन या रिचार्ज स्टार्ट नहीं किया तो। सो ये रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे शो किया है इसीलिए। ये एक और डेप्थ टू वाटर लेवल मैप है इंडिया का। तो डेप्थ टू वाटर लेवल, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सरफेस से कितनी डेप्थ पे वाटर आपको मिलता है। सो जो आप राजस्थान के एरियाज देखो जो कि रेड एरियाज हैं, इनमें आपको जो वाटर लेवल है वो 40 मीटर से ज्यादा नीचे मिलेगा, 40 मीटर से ज्यादा नीचे मिलेगा। लेकिन अगर आप झारखंड के एरियाज देखो, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये जो येलो एरियाज हैं, ये आपको 5 से 10 मीटर में वाटर लेवल मिलेगा। अच्छा, अब इसमें एक और यहाँ पे चीज लिखा हुआ है जैसे प्री मानसून। तो प्री मानसून वो समय होता है जब बारिश के पहले का, ठीक है। ये डेटा जो प्री मानसून का, ये बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए होता है क्योंकि बरसात के पहले किस लेवल तक, कितनी डेप्थ तक आपका ग्राउंड वाटर डिटीरिएट हो रहा है, कितनी नीचे तक आपका ग्राउंड वाटर जा रहा है, ये बहुत जरूरी चीज है। इसलिए हम लोग प्री मानसून का वाटर लेवल लिया जाता है, हम लोग लेते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि जो आप खेती करते हैं, जो किसान होते हैं वो खेती करते हैं, वो ग्राउंड वाटर को ही एक्सट्रैक्ट करते हैं उस समय है, क्योंकि बारिश आपको जो है वो बस मानसून पीरियड में है। मानसून पीरियड के बाद फिर वो क्या करेंगे, या तो वो तालाब से इरिगेशन करेंगे या तो किसी नदी से इरिगेशन करेंगे। अगर उनके पास ये दोनों ऑल्टरनेटिव नहीं है तो वो ग्राउंड वाटर से इरिगेशन करेंगे। इसलिए जो आपका खरीफ का जो क्रॉप्स होता है, खरीफ की जो क्रॉपिंग होती है, उसमें ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत अच्छा करते हैं और जिसकी वजह से हम लोग प्री मानसून का वाटर लेवल लेते हैं। उसके बाद जो अगला मैप आप देखोगे वो है पोस्ट मानसून का। पोस्ट मानसून वो होता है जो जस्ट मानसून खत्म होता है और एक और रीडिंग हम लोग उसके बाद लेते हैं कि अब क्या स्थिति है ग्राउंड वाटर की, अब कितना पानी ग्राउंड वाटर में है, कितना डेप्थ टू वाटर अभी पानी आया है। सो इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसमें जैसे मोस्टली जो एरिया है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। पहले वो एरिया रेड येलो में था लेकिन अब वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, मतलब थोड़ा सा रिचार्ज फैक्टर ऐड हुआ है जिसकी वजह से वाटर लेवल आपका 2 मीटर से 5 मीटर में आया है। सो ये हो गया। ओके, सो उसी तरह धनबाद में अब अगर आप देखो तो ये धनबाद में आपका जो ड्रेनेज मैप है ये आप देख सकते हो। इधर आपके बराकर नदी है, इधर आपका जो है दामोदर नदी है। सो ये आपको बहुत हद तक हेल्प करता है जो इसके एडजॉइनिंग एरियाज हैं वहाँ पे इरिगेशन करने में। और इसके अलावा भी और भी छोटी नदियां हैं जिससे लोग इरिगेशन करते हैं, लेकिन जो बीच में जैसे ये जगह है धनबाद का या फिर और भी जो बाकी जगह हैं, तो यहाँ पे लोग मोस्टली ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंडेंट रहते हैं जिसपे वो इरिगेशन करते हैं। ये धनबाद का अब डेप्थ टू वाटर लेवल है प्री मानसून का, आप देख सकते हैं 2012 का डेटा है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो डीपर एक्विफर्स आपके हैं वो आपके कतरास और धनबाद के एरिया में है। यहाँ पे आपको डीपर मतलब वाटर लेवल मिल रहे हैं क्योंकि हो सकता है यहाँ पे ज्यादा लोग एक्सप्लॉइट इसको कर रहे हैं, ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। उसी तरह 6 से 10 मीटर की जो डेप्थ है वो आपको वेस्टर्न धनबाद में मिलेगी, मतलब टुंडी हो गया, तो चांची हो गया, बागमारा हो गया, इन एरियाज में हो गया। और जो शैलो अगर आप 6 मीटर से कम देखो तो आपके ईस्टर्न धनबाद मतलब निरसा, गोविंदपुर, बलियापुर, इन जगहों में आपको कम डेप्थ पे मिलेंगे पानी। उसी तरह ये पोस्ट मानसून का मैप है, मतलब जस्ट बरसात के बाद नवंबर के समय का ये जो वाटर टेबल का मैप है, सॉरी डेप्थ टू वाटर लेवल का मैप है, जो आप देख सकते हैं निरसा में आपको 2 मीटर से कम है। और जो एरिया था ये
आपका थोड़ा कम हो गया यहाँ पे, गोविंदपुर, टुंडी, इन जगहों पे आपके 2 से 4 मीटर में आ गया। फिर जो आपका झरिया, बागमारी, ये सब एरियाज है तो 4 से 6 मीटर के। अच्छा, ये जो वाटर लेवल्स है ये फ्रियाटिक एक्वीफर की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो अनकन्फाइंड एक्वीफर्स है ये उनकी बात हो रही है, ठीक है। सो अब जो रिसोर्स जो हम लोग बनाते हैं, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिसोर्स बनाती है, उसमें काफी इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है, क्योंकि इस रिसोर्स से पूरी इंडिया में जो है प्लानिंग्स अलग अलग होती हैं कि आप कहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, कहाँ पे आपको रिचार्ज करवाने हैं, कहाँ पे कौन से रिचार्ज प्रपोजल्स करने हैं, और बहुत सारी बड़ी बड़ी जो पॉलिसीज बनती है इंडिया की वो इस रिसोर्स के बेसिस पे बनती है। सो इसलिए इस रिसोर्स को बनाने में बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं, बहुत सारे टॉप लेवल के लोग रहते हैं इन्वॉल्व। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो 2017 का जो रिसोर्स था उसमें आप करीब इतने लोग इन्वॉल्व थे, जो कि चेयरमैन जो हैं CGWB के वो चेयर करते हैं इस कमेटी को, और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ क्या बोलते हैं फॉरेस्ट वाले लोग रहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रहता है, नीति आयोग रहता है, नाबार्ड के लोग रहते हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन, ये सरफेस वाटर बॉडी है, वो इन्वॉल्व रहती है। तो काफी एक बहुत बड़ी चीज है रिसोर्स, जिसको हर 2 साल पे 3 साल पे रिवाइज किया जाता है, ताकि इस पे बहुत सारे पॉलिसीज बनते हैं गवर्नमेंट की। सो एम क्या है रिसोर्स का, ग्राउंड वाटर क्यों हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, ताकि हमको पता चले कि हमारे पास कितना वाटर अवेलेबल है और उसको हम अच्छी तरह से सस्टेनेबली यूज कर सकें, इसलिए ये किया जाता है। और तो अवेलेबल रिसोर्स क्या है हमारा, जैसे आप देख सकते हैं टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर इन एन एरिया। सो इसमें कौन कौन सा चीज आता है, पहला जो टोटल अवेलेबिलिटी है आपके अनकन्फाइंड एक्वीफर में, जो फ्रियाटिक एक्वीफर है उसमें कितना रिसोर्स अवेलेबल है। टोटल अवेलेबिलिटी इन सेमी कन्फाइंड एक्वीफर्स, जो कि आपकी जस्ट जो लीकी एक्वीफर या सेमी कन्फाइंड बोलते हैं, जो कन्फाइनिंग बेड इसमें क्या होता है वो थोड़ी तरह से एक्विटार्ड का होता है, और वो वर्टिकल या लैटरल ट्रांसमिशन अलाउ करता है पानी का। सो उस केस में उसको सेमी कन्फाइंड एक्वीफर बोलते हैं। सो उसमें कितना पानी है, और जो कन्फाइंड एक्वीफर्स है उसमें कितना वाटर अवेलेबल है। सो इन तीनों के सम को हम टोटल अवेलेबिलिटी बोलते हैं। लेकिन CGWB जो पब्लिश करती है रिपोर्ट्स, उसमें हम लोग बस अनकन्फाइंड एक्वीफर की प्रॉपर्टीज बताते हैं, उसमें हम लोग इसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं सेमी कन्फाइंड को और कन्फाइंड को, ताकि जो एक्सट्रैक्शन है उसको हम लोग थोड़ा लिमिट डाउन कर सकें और उसको थोड़ा सस्टेनेबल वे में उसको लेके चला जा सके। इसलिए जो पब्लिश होती है रिपोर्ट, हम लोग उसको साइंटिफिक स्टडी में उसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम लोग उसको पब्लिश नहीं करते हैं, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी जो है अब वो हार्ड रॉक एरियाज में अलग हो जाती है और सॉफ्ट रॉक में अलग हो जाती है। अब हार्ड रॉक्स में जो क्या है, जो डीपर एक्वीफर्स है वो जनरली सेमी कन्फाइंड हो जाती हैं, जो कि डीपर फ्रैक्चर्स की वजह से होता है। तो उसमें क्या है, कुछ केसेस में जो डीपर एक्वीफर्स हैं अगर वो रिचार्ज हो रहे हैं आपके जो अपर अनकन्फाइंड एक्वीफर्स हैं, तो उसको हम लोग ओमिट करते हैं। और उसी तरह फिर जो हार्ड रॉक फॉर्मेशन सॉफ्ट रॉक फॉर्मेशन में आता है, ओके ये स्लाइड रिपीट हो गया आई गेस, ओके। तो अब क्या है कि अगर एक्वीफर मैपिंग जो हम लोग कर रहे हैं, इफ एक्वीफर मैपिंग इज कंप्लीटेड, ठीक है, तो उसको हम दोबारा से एसेस करते हैं, शुड बी असेस फॉर वेरियस एक्वीफर, ठीक है। और उसको जो हम लोग डेप्थ वाइज जो कंसिडर करते हैं, हार्ड रॉक में 100 मीटर तक का डेप्थ को हम लोग फ्रियाटिक में जनरली लेते हैं, और सॉफ्ट रॉक में कभी कभी 300 मीटर तक का भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर इन एन एक्वीफर, ये क्या है, जो हम लोग रिसोर्स कर रहे हैं वो डायनेमिक रिसोर्स करते हैं। इसको मैं बताना चाहूंगा, डायनेमिक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हर साल चेंज होता है। हर साल आपका जो डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स है वो चेंज होता है। ये कैसे होता है, जैसे आप सपोज बरसात हुआ, जिस साल आपके ज्यादा बारिश हुआ, ज्यादा रिचार्ज हुआ, उस साल आपका रिसोर्स अच्छा हो जाता है। जिस साल आपका बारिश कम हुआ, डेफिसिट हुआ, रिचार्ज फैक्टर कम रहा, तो उस साल आपका रिचार्ज जो रिसोर्स है वो थोड़ा कम रहता है। इसलिए इसको हम लोग डायनेमिक बोलते हैं, क्योंकि वो चेंजिंग प्रोसेस है। इसको आगे मैं और समझाऊंगा कि इसको कैसे किया जाता है।
और दूसरा एक होता है स्टैटिक वाटर रिसोर्स। अब स्टैटिक या इन स्टोरेज, ये जनरली जो कन्फाइंड एक्विफर्स होते हैं उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि ये स्टैटिक रिसोर्स है, क्योंकि उसमें ज्यादा ऑल्टरेशन नहीं होता है। इसको कैलकुलेशन जब हम लोग आगे थोड़ा सा है, मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा और क्लियर आइडिया मिलेगा, ठीक है। सो डायनेमिक ग्राउंड वाटर जैसे मैंने बताया, डायनेमिक इसलिए क्योंकि ये हर साल रिचार्ज होता है, रिप्लेनिश होता है, और हर साल इसको हम लोग चेंज खोजते रहता है। ओके, और इन स्टोरेज क्या है अब? ओके, सो स्टैटिक या इन स्टोरेज क्या है? जहाँ पे वो हर साल रिप्लेनिश नहीं होता है, और जो है जो ग्राउंड वाटर दैट इज अवेलेबल बिलो द डायनेमिक जोन। डायनेमिक जोन वो हो गया, सपोज अगर आप कंसिडर करो आपके यहाँ आपके घर पे एक वेल है जो कि आपने बनाया 10 मीटर का वेल बनाया है, ठीक है। उसमें आपको वाटर लेवल मान लो आप 8 मीटर पे मिल रहा है। जो 8 मीटर का रीडिंग है वो बरसात के पहले का है, प्री मानसून का है, ठीक है। 8 मीटर पे आपको पानी मिला, लेकिन बारिश हो जाने के बाद जब वो रिचार्ज हुआ तो वाटर लेवल आपका ऊपर आ गया। जो डेप्थ टू वाटर लेवल है वो आपको कंसिडर कीजिए 6 मीटर पे आ गया। सो आपका जो 8 मीटर से 6 मीटर का जो डिफरेंस हुआ वाटर लेवल का, दैट इज योर फ्लक्चुएशन जोन या डायनेमिक जोन, वो आपका डायनेमिक जोन है। सो इसका रिसोर्स जब हम कैलकुलेट करते हैं पूरे उस एरिया के लिए, तो उसको हम डायनेमिक रिसोर्स बुलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं डेट इज अवेलेबल बिलो प्री मानसून वाटर लेवल, और ये वन टाइम रिसोर्स होता है इन स्टोरेज के लिए, क्योंकि वो एक बार आपने अगर खत्म कर दिया तो रिचार्ज होने में सालों लग जाएंगे, वो फिर आप उसको दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से वही चीज है, जैसे कि ग्राउंड वाटर जो इन स्टैटिक या फिर जो इन स्टोरेज जो बोलते हैं, तो उसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशंस जब हो जाती हैं, जब आपको लगता है कि आपका जो फ्रियाटिक जोन है या जो अनकन्फाइंड जोन है वो आपका ड्राई हो गया है और कंडीशंस नहीं है कि आप वहाँ पे लिविंग सही से कर पाओ, इरिगेशन कर पाओ। उस केस में आप स्टैटिक में या इन स्टोरेज वाली एक्विफर को भी आप टैप करते हो और उसको भी फिर आप यूज में लेते हो, ठीक है। ओके, सो जो 2017 का जो ग्राउंड वाटर का रिसोर्स कैलकुलेट किया गया था उसके लिए जैसे मैंने पीछे दिखाया एक कमिटी थी, तो वो कमिटी काफ़ी कुछ उसमें एडवाइसेस देती है, काफ़ी कुछ उसमें आइडिया बोलती है कि नहीं आपको ये स्टेप लेने चाहिए, आप इस तरह से उसको कैलकुलेट करें। सो एक कमिटी बनती है जिसमें आप काफ़ी सारे लोग रहते हैं, और हर स्टेट से जो स्टेट की ग्राउंड वाटर बोर्ड्स होती हैं वो इंक्लूडेड होती है, ताकि जो डेटा बन रहा है आपका दैट इज वेरी रोबस्ट और काफी अच्छा डेटा है, उसमें कोई गलतियां या कोई खामियां ना हो। सो अगर आप देखो तो जब ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज निकालते हैं तो उसको हम किस बेसिस पे यूनिट्स जो उसके होते हैं क्या होते हैं, तो जनरली अगर आप देखो तो ज्यादातर जो एलुवियम एरियाज हैं, अब एलुवियम एरियाज में क्या होता है कि जो एक्विफर होते हैं वो कंटिन्यूस लैटरली कनेक्टेड होते हैं। सो उस केस में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को लेते हैं एज एन यूनिट। अब जैसे कि अगर धनबाद है तो धनबाद के हर एक ब्लॉक्स को हम कंसिडर करते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और एक ग्राउंड वाटर असेसमेंट यूनिट। तो जो रिसोर्स हम निकालते हैं वो हर एक ब्लॉक या तालुका का निकालते हैं, हम हर एक ब्लॉक या तालुका का निकालते हैं, जैसे कि धनबाद ब्लॉक या फिर गोविंदपुर ब्लॉक या फिर तोपचाची ब्लॉक, इस तरह हर एक ब्लॉक के रिसोर्स को निकालते हैं हम। और जहाँ पे आपका जो एक्विफर है वो अगर हार्ड रॉक है, ठीक है, कॉम्पैक्ट है, तो उस केस में क्या है थोड़ी लैटरल कंटिन्यूटी कम हो जाती है एक्विफर्स में, और उस जगह पे हम हाइड्रोलॉजिकल बाउंड्रीज को असेसमेंट यूनिट बनाते हैं। अब हाइड्रोलॉजिकल बाउंड्रीज क्या हो गई? हाइड्रोलॉजिकल बाउंड्रीज हो गई आपकी जो वाटर बेसिन्स हैं, जो कि सरफेस वाटर बेसिन्स है, उनको कंसिडर कीजिए आप। जैसे कि जो दामोदर रिवर है, तो दामोदर रिवर के बेसिन को एज अ होल हम लोग एक असेसमेंट यूनिट कंसिडर करते हैं। ये जहां उस कंडीशंस में जहां वहां हार्ड रॉक एक्विफर्स बनते हैं, ये मोस्टली साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में, इन जगहों पे उसको हम लोग हाइड्रोलॉजिकल बाउंड्री के हिसाब से असेसमेंट यूनिट बनाते हैं। और जो अलुवियम एरियाज है जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बिहार, वेस्ट बंगाल, तो इन जगहों पे हम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री के हिसाब से रिसोर्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है कि
अब जो ग्राउंड वाटर के सब यूनिट्स हैं, अगर वो हिली एरिया में है तो वहाँ पे रिचार्ज पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको हम लोग ओमिट कर देते हैं हिली एरियाज को। फिर जो रिचार्ज वर्दी एरियाज है जहाँ रिचार्ज पॉसिबल है उसको इंक्लूड करते हैं। उसी तरह जहाँ पे ग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी है जो अच्छी होती है उसको हम लोग एक लेबल लगा देते हैं कि हाँ यहाँ पानी अच्छा है, गुड क्वालिटी ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे परमिसिबल लिमिट, यहाँ पे जो जो अपने इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, जो ड्रिंकिंग इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से यहाँ पे उसको लिमिट लगाते हैं। और जो पानी जैसे खारा है या फिर उसमें जैसे वेस्ट बंगाल के उधर आप देखे होंगे आर्सेनिक का थोड़ा सा इशू है कि फ्रियाटिक जोन में आपके आर्सेनिक है, सो उसको भी हम लेबल लगाते हैं कि यहाँ पे जो वाटर है उसमें आर्सेनिक ज्यादा है, परमिसिबल लिमिट्स ज्यादा है, दैट इज अनफिट। तो उस तरह के लेबल्स हम लगाते हैं क्वालिटी बेसिस पे। अब उसके बाद एक और चीज आता है कमांड एरिया, नॉन कमांड एरिया। कमांड एरिया क्या होता है? जहाँ पे जो इरिगेशन है दैट इज थ्रू एनी कनाल या फिर कोई एक बहुत बड़ा इरिगेशन स्कीम है उसके थ्रू जहाँ इरिगेशन होता है दैट इज कंसिडर्ड एज कमांड एरिया। और जो नॉन कमांड एरिया है उसको क्या बोलते हैं? जहाँ पे आप ग्राउंड वाटर से कर रहे हो, ठीक है, ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वो कहलाता है नॉन कमांड एरिया। ठीक है, अब ये कुछ ग्राउंड वाटर ईयर्स के बारे में है कि जैसे आपका जो वाटर ईयर है वो कब से कब चालू होता है, जो आपका प्रीडोमिनेंट मानसून होता है वो कब से कब रहता है। जैसे आप देख सकते हैं डोमिनेंट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये दो चीज हो गया। फिर आपका जो ग्राउंड वाटर ईयर है वो कब से कब अलग अलग जगहों में कब कब होता है, जैसे जून से मई कुछ जगहों पे होता है, कुछ जगह में जुलाई टू जून होता है, ठीक है, कुछ जगह में अक्टूबर टू सितंबर होता है। तो ये अलग अलग जगहों के बारे में दिया हुआ है, इसको आगे स्किप करते हैं। ठीक है, सो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ अनकन्फाइंड एक्विफर, ठीक है, जो फ्रियाटिक एक्विफर है उसकी एस्टिमेशन के लिए। सो ये एक सिंपल सा आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप फॉर्मूलाज पे उतना फोकस नहीं करोगे तो मैं आपको आराम से समझा दूंगा। ये क्या है? स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। आप कितना पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, कितना पानी निकाल रहे हो, है ना, स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। इसको हम लोग परसेंटेज में डिनोट करते हैं, ठीक है, परसेंटेज में इसको डिनोट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाइड है इसमें। अच्छा, अब ये होता क्या है? ये होता है जो एग्जिस्टिंग ग्रॉस ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन फॉर ऑल यूजेस। इसका क्या मतलब है? आप कितना पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो अलग अलग पर्पसेस के लिए। यहाँ पे मेजर 3 पर्पस आगे आएंगे। पहला डोमेस्टिक पर्पस, आप जो घर में पानी इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, दैट इज डोमेस्टिक पर्पस। उसके बाद अगला आएगा इंडस्ट्रियल पर्पस, जो इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती हैं उनको भी बहुत ह्यूज अमाउंट में पानी चाहिए होता है, ठीक है, कुछ भी प्रोड्यूस करने में, ठीक है, तो वो इंडस्ट्रियल पर्पस हो जाएगा। और उसी तरह जो तीसरा आएगा वो आएगा इरिगेशन पर्पस, जो कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, ठीक है। अगर आप देखो तो इंडिया में 70% एक्सट्रैक्शन जो होता है पानी का वो इरिगेशन सेक्टर में लिया जाता है, ठीक है, और बचा जो उससे वो इरिगेशन में इंडस्ट्रियल यूज में, और सबसे कम जो है वो डोमेस्टिक यूज में जाता है, ठीक है। सो जो आप न्यूमरेटर में देख रहे हो दैट इज एग्जिस्टिंग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन फॉर ऑल यूजेस, और जो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हो दैट इज एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स, यानी कितना रिसोर्स आपके पास है। अगर आप कंसिडर करो कि आपके पास जो 100 लीटर या 100 लीटर आपके पास पानी अवेलेबल है, दैट इज एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स। अगर आपके पास 100 लीटर पानी अवेलेबल है, उसमें आप 10 लीटर पानी मान लो घर पे यूज कर रहे हो, अपने डोमेस्टिक यूज पे कर रहे हो, 20 लीटर पानी आप कुछ इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हो, ठीक है, और 60 लीटर पानी अगर आप इरिगेशन में यूज कर रहे हो तो दैट कम्स टू 90, ठीक है। सो 90 आप टोटल एक्सट्रैक्ट किया आपने, आपके पास अवेलेबल था 100, तो जो स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होगा दैट विल बी 90%, ठीक है। ये चीज बोलते हैं स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को, और यही बताता है कि आपका जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स है वो उस जगह का, उस तालुका का, उस प्लेस का कैसा है।
इसको हम लोग आगे देखेंगे, ये 4 तरह से डिवाइडेड है, ठीक है। एक होता है सेफ कैटेगरी, एक होता है सेमी क्रिटिकल कैटेगरी, एक होता है क्रिटिकल कैटेगरी, और एक होता है ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी। तो ओवर एक्सप्लॉइटेड वो कंडीशन होता है जब आप 100% से ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। सपोज करो आपके पास 100 लीटर पानी सो दैट टेबल है, लेकिन आपने 110 लीटर पानी एक्सट्रैक्ट कर लिया, दैट इज ओवर एक्सट्रैक्ट। उसके बाद जो क्रिटिकल कैटेगरी होता है वहां पे वो रेंज में आपको बताऊंगा, 90 से 100 का वो रेंज होता है, और जो सेमी क्रिटिकल का कैटेगरी होता है वो 70 से 90 का होता है, और 70 के नीचे सेफ कैटेगरी होता है। ये आगे और मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो जो अप्रोच है रिसोर्स एस्टिमेशन का, उसको हम लोग लम्प पैरामीटर मॉडल के हिसाब से बोलते हैं, क्योंकि जो एक्विफर्स है वो लैटरली कनेक्टेड है और इसमें थोड़ा टाइम का फैक्टर भी इन्वॉल्व रहता है, इसलिए ये लम्प पैरामीटर मॉडल से हम लोग करते हैं, ठीक है। और जो बेसिक इक्वेशन रिसोर्स को गवर्न करता है वो क्या है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज। एक सिस्टम में ग्राउंड वाटर जो सिस्टम है उसमें आपका इनफ्लो जो है वो होता है रिचार्ज कंपोनेंट, वो कितना रिचार्ज ग्राउंड वाटर तक पहुंच रहा है, माइनस जो आपके आउटफ्लो है, जो आप अलग अलग एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, या वो पानी थ्रू डिस्चार्ज रिवर में जा रहा है, या वो पानी इवेपोरेट हो जा रहा है, या और भी सारे अलग अलग आउटपुट जो आउटफ्लोज हैं। सो इन दोनों के डिफरेंस को हम चेंज इन स्टोरेज बुलाते हैं। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज चेंज इन स्टोरेज, ठीक है। सो अब क्या क्या कंपोनेंट्स है इनफ्लो के। पहला सबसे बड़ा सबसे बेसिक है रेनफॉल रिचार्ज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर रेनफॉल अच्छा है तो ये अच्छा रिसोर्स के लिए रिचार्ज अच्छा होगा, रिसोर्स अच्छा रहेगा उस साल का। अगर रेनफॉल कम है तो कम होगा। उसके बाद जो है रिचार्ज फ्रॉम कनाल्स, कनाल्स से जो रिचार्ज होता है वो। अब कनाल से कैसे रिचार्ज होता है ये आप पूछोगे तो इसको मैं आगे बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। जो सरफेस वाटर इरिगेशन से है, अगर जो नदी से आप इरिगेशन कर रहे हो या तालाब से इरिगेशन कर रहे हो तो उसके थ्रू भी रिचार्ज होता है। जो ग्राउंड वाटर से आप इरिगेशन कर रहे हो तो उससे भी रिचार्ज। अब ये देखो आप एक लूप बन गया, आप सरफेस जो ग्राउंड वाटर है वो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, आप बाहर निकाल रहे हो उसको, और उसको आप खेत में डाल रहे हो, और वो भी आप एक रिचार्ज फैक्टर के तौर पे काम कर रहा है। वहां से भी पानी इनफिल्टर होके आपके ग्राउंड वाटर टेबल को वापस जा रहा है, तो ये भी एक लूप वाला फैक्टर है। हालांकि बहुत कम अमाउंट जाता है, अगर आप कंसिडर करो तो करीब 10% के से आसपास कुछ रिचार्ज बनता है उसका। आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में और थोड़ा। सो रिचार्ज फ्रॉम टैंक एंड पॉन्ड, जो टैंक और पॉन्ड बने होते हैं, जो तालाब होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उससे। रिचार्ज फ्रॉम वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स, जो कि स्पेसिफिकली रिचार्ज के लिए बनाए जाते हैं। बहुत जगहों पे आप देखेंगे राजस्थान में और काफी जगहों पे आजकल जो कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जा सके, उनसे जो रिचार्ज हो रहा है। फिर उसके अलावा जो लैटरल इनफ्लो अक्रॉस बाउंड्रीज, अब इसका क्या मतलब है, जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को कंसिडर करते हैं अलूवियम एक्विफर्स में, तो अब जो आपका जैसे कंसिडर कीजिए आप बिहार के रिसोर्स को कंसिडर कर रहे हो, तो बिहार में क्या है, लैटरल इनफ्लो आपका यूपी से हो रहा है। मतलब कि आपने जो देखा था ऊपर कि ग्राउंड वाटर फ्लो डायरेक्शंस हैं आपके फ्रॉम उत्तराखंड यूपी से लेते हुए वो बिहार और बंगाल तक जाता है ग्राउंड वाटर फ्लो। सो ये लैटरल फ्लो है ग्राउंड वाटर का। सो इस वजह से आप लैटरल फ्लो को अगर नहीं लेते हो तो आपका रिसोर्स गलत हो जाता है। सो लैटरल फ्लो अक्रॉस बाउंड्री एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है चीज है। फिर सब सरफेस इनफ्लो जो है, सब सरफेस में काफी समय से जो स्ट्रीम्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, तो उसके वजह से फ्लो होती हैं। फिर वर्टिकल फ्लोज भी कुछ केसेस में होते हैं। तो ये सारे आपके इनफ्लो कंपोनेंट्स है। उसी तरह आउटफ्लो कंपोनेंट्स में क्या क्या है, आउटफ्लो कंपोनेंट्स में आप देखोगे जो ग्रॉस ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है, जो आप ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, जो आप बोर बना के डगवेल बना के इरिगेट कर रहे हो या कंपनीज में यूज कर रहे हो, दैट इज ग्रॉस ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। उसके अलावा जो आपके लैटरल आउटफ्लोज अक्रॉस बाउंड्री है, ठीक है।
आपकी जो आउटफ्लोज अक्रॉस बाउंड्रीज हैं, फिर उसी तरह जो सब सरफेस आउटफ्लोज हैं या फिर वर्टिकल एक्विफर के थ्रू आउटफ्लोज हैं, उसके अलावा इवेपोरेशन है, ट्रांसपोरेशन है, तो ये सारे आउटफ्लो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं इसमें। ठीक है, रिसोर्स एस्टिमेशन में तो सबसे पहला हमको क्या कंप्यूट करना है कि हम कितना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सालाना हम कितना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं। दूसरा हमको क्या करना है, एक सेकेंड, ओके ठीक है। सो शायद टाइम की कमी हो रही है हमारे पास। ठीक है, तो थोड़ा मैं इसको और जो ज़रूरी है बस उसको बताऊंगा। ठीक है, सो जो कंप्यूटेशन जो है वो हम कितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो हो गया। ठीक है, फिर जो रिचार्ज हो रहा है ड्यू टू अदर सोर्सेज वो हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से रिचार्ज हो रहा है। ठीक है, जो इनफ्लोज हैं आउटफ्लोज हैं उसको कंप्यूट करेंगे, जो रेनफॉल से रिचार्ज होता है उसको कंप्यूट करेंगे, और जो समरी लास्ट में है वो देखेंगे। ठीक है, और रिचार्ज जैसे मैंने बताया कनाल से रिचार्ज होता है, सरफेस वाटर से रिचार्ज होता है, ग्राउंड वाटर से भी रिचार्ज होता है, टैंक पॉन्ड, ये सबसे बताया मैंने। लेटरल फ्लोज के बारे में, आउटफ्लोज का कंपोनेंट हो गया, कंप्यूटेशन और समरी डिटेल्स। ठीक है, अब ये एक समरी डिटेल्स मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स, ये आपने पिछले स्लाइड में उधर देखा कि जो आपके पास अवेलेबल है जिसको आप एक्सट्रैक्ट कर सको वो चीज। करेंट स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, आप कितना परसेंटेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको वैलिडेट करते हैं, फिर कैटेगराइज करते हैं, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। कि इसको स्किप करते हैं। अब जैसे मैं बता रहा था तीन तरह के यहाँ पे आपके एक्सट्रैक्शन होते हैं, डोमेस्टिक एक्सट्रैक्शन, इरिगेशन एक्सट्रैक्शन और इंडस्ट्रियल एक्सट्रैक्शन। तीनों को ब्रीफली मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, जो टोटल एक्सट्रैक्शन आपका है, ठीक है, दैट इज सम ऑफ ऑल दिस थ्री, डोमेस्टिक एक्सट्रैक्शन, इरिगेशन एक्सट्रैक्शन एंड इंडस्ट्रियल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, सो जो डोमेस्टिक एक्सट्रैक्शन है वो क्या होता है कि हर एक आदमी अपने घर में कितना पानी यूज कर रहा है, ठीक है, उसका पूरा पॉपुलेशन जो है उस एरिया का उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग एक एक्सट्रैक्शन बताते हैं, डोमेस्टिक एक्सट्रैक्शन, जो कि दो तरह से कर सकते हैं, या तो यूनिट ड्राफ्ट मेथड से करते हैं या तो कंजम्पटिव यूज मेथड से करते हैं। तो यूनिट ड्राफ्ट क्या होता है कि हर एक पर्सन कितना पानी यूज कर रहा है इनटू दैट मच ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और कंजम्पटिव यूज उस तरह से क्या होता है कि जो सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे जो यूनिट ड्राफ्ट है दैट इज थ्रू एब्स्ट्रैक्शन स्ट्रक्चर, कितने एब्स्ट्रैक्शन स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं और हर एब्स्ट्रैक्शन स्ट्रक्चर से आप कितना पानी निकाल रहे हैं। ठीक है, कंजम्पटिव यूज में क्या होता है कि आप एक आदमी इतना पानी, सपोज आप 100 लीटर पानी निकाल सकते हो और आपके जो तालुका है उसमें मान लो 1000 लोग हैं, तो आपके 1 लाख 10 लाख के आसपास आपका वहां पे एक्सट्रैक्शन हो गया। सो उस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इरिगेशन एक्सट्रैक्शन में भी ये तीन चीजें हैं, एक यूनिट ड्राफ्ट मेथड की एक बोर से या एक ट्यूबवेल से कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर्स ऑफ बोर्स या ट्यूबवेल्स। और क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट एक और तरीका है जहाँ पे अलग अलग तरह के जो क्रॉप्स हैं, सपोज राइस है या पैडी जिसको बोलते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर यूज करता है अपने लाइफ में। ठीक है, जब आप वो राइस का हार्वेस्टिंग का क्या बोलते हैं, इरिगेशन करते हो, तो वो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट उसका होता है, और कितने एरिया में आपने वो क्रॉपिंग किया है वो आपको क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट से पता चलता है। ठीक है, पावर कंजप्शन मेथड उसी तरह क्या होता है, कभी कभी जो एक्सट्रैक्शन स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल मोटर लगा हुआ होता है, सबमर्सिबल पंप जो लगा होता है, तो कितना पावर कंज्यूम हो रहा है उससे भी करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको थोड़ा मैं स्किप करता हूँ, बेसिक में पे थोड़ा चला जाता हूँ। ठीक है, एक्चुअली रिसोर्स खुद में इतना बड़ा एक चीज है कि ये करीब 1 वीक का ट्रेनिंग अगर किया जाए इस पे तो सक्सेसफुल रहेगा। अच्छा, यहाँ अब आते हैं। ठीक है, टोटल ग्राउंड वाटर रिचार्ज ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, सो कितना रिचार्ज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल ग्राउंड वाटर रिचार्ज ड्यूरिंग मॉनसून एक चीज है। ये क्या होता है आपका
RRF पहला मतलब रिचार्ज ड्यू टू रेनफॉल, कितना रिचार्ज हुआ, उसमें आपने क्या किया RC यानी रिचार्ज ड्यू टू कनाल्स। कनाल से जैसे आप इरिगेट करो, कनाल से पानी एक्सट्रैक्ट करके आप पानी निकालते हो कनाल से और अपने एरिया को इरिगेट करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपका जो सॉइल में पानी इनफिल्टर होके धीरे धीरे रिचार्ज होता है ग्राउंड वाटर को। सो रिचार्ज फ्रॉम कनाल आ गया, रिचार्ज फ्रॉम सरफेस वाटर हो गया, रिचार्ज फ्रॉम ग्राउंड वाटर हो गया। ये सारा सम अप करके हम लोग फिर रिचार्ज फ्रॉम टैंक्स एंड पॉन्ड हो गया, रिचार्ज फ्रॉम वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर, ये सारे इनफ्लो कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। रिचार्ज फ्रॉम यहाँ पे STR यानी कि हो गया रिचार्ज फ्रॉम क्या यहाँ पे रिचार्ज ड्यू टू हाइड्रोलिक कंडक्टेड स्ट्रीम्स। तो ये सारा रिचार्ज इनफ्लो कंपोनेंट्स हो गया। और इसमें हम प्लस माइनस यहाँ पे ऐड किया है, वर्टिकल फ्लो अगर है, लेटरल फ्लो अगर है, वो उन दोनों को माइनस कम लोगों ने और आउटफ्लो को किया, जो कि ट्रांसपिरेशन है, जो कि इवेपोरेशन है और जो बेस फ्लो है, इनको। ठीक है, उसी तरह नॉन मानसून में भी आप यही देखोगे कि ये आपका दो यहाँ पे अवेलेबल है, ये ड्यूरिंग मानसून है, ये ड्यूरिंग नॉन मानसून है। तो नॉन मानसून में कहीं कहीं जगहों पे बारिश होती है, तो इसलिए इसको कंसिडर किया गया है रिचार्ज ड्यू टू रेनफॉल, बाकी पूरा सेम है। ठीक है, अब क्या आते हैं टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्या है। ठीक है, तो ये सम है मानसूनल रिचार्ज का और नॉन मानसूनल रिचार्ज का। ठीक है, और जो एनुअल एक्सट्रैक्टेबल जो बात कर रहे थे हम लोग, कितना पानी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो क्या होता है आपका जो टोटल एनुअल रिचार्ज है, उसमें से आप इन्वायरमेंटल फ्लो को घटा देते हो। जनरली 5 से 10% जो है वो आपका इन्वायरमेंटल फ्लो हम लोग कंसिडर करते हैं, उसको घटा देते हैं। सपोज आपके पास 100 लीटर पानी रिचार्ज हुआ है, सो उसमें आप 10% घटा दोगे, 90 के आसपास आपका जो एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स बचता है। अब उस 90% को आप कैसे यूज करते हो, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने जैसे बताया कि स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन क्या है आपका, जो आपके पास एग्जिस्टिंग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कितना है डिवाइडेड बाय जो आपके पास एक्सट्रैक्टेबल अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर अवेलेबल है। ठीक है, ये चार चीज मैं बता रहा था, चार तरह की कैटेगरी होती हैं। ठीक है, एक होता है सेफ कैटेगरी, एक होता है सेमी क्रिटिकल कैटेगरी, एक होता है क्रिटिकल कैटेगरी, एक होता है ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी। तो सेफ कैटेगरी वो होता है जहाँ पे स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 70% से कम है, मतलब कि आपके पास 100 लीटर अवेलेबल पानी था, आपने 69 लीटर पानी यूज किया, जो बाकी 31 लीटर पानी है वो आपने यूज नहीं किया, दैट इज सेफ कैटेगरी। सेमी क्रिटिकल कैटेगरी क्या है, जहाँ पे 70% आपने यूज किया, आपके पास 100 लीटर पानी अवेलेबल था, आपने 75% यूज किया, सो वो सेमी क्रिटिकल कैटेगरी में आ गया। क्रिटिकल कैटेगरी क्या हो गया, जहाँ पे आपके पास 100 लीटर पानी अवेलेबल था, आपने 90 से ऊपर यूज किया, दैट इज क्रिटिकल कैटेगरी। और ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी क्या होता है, जहाँ पे आपने 100 लीटर आपके पास पानी अवेलेबल था, लेकिन आपने 100 लीटर से ज्यादा यूज किया। ठीक है, क्वालिटी टैग जैसे मैंने बताया, जहाँ पे थोड़ा आर्सेनिक या सैलिनिटी का इशू होता है, उसको हम लोग टैग लगा देते हैं, तो इसको हटाते हैं अभी। ठीक है, अच्छा अब इस पे आते हैं, ये क्या है, ये ग्राउंड वाटर रिसोर्स है झारखंड का 2017 का। इसमें अगर आप देख सकते हो, ओके यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे झारखंड में आपका धनबाद, कहाँ गया धनबाद, ये रहा ऊपर से 4th नंबर। ठीक है, सो यह धनबाद का रिसोर्स कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, सो धनबाद का रिसोर्स यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, जो रिचार्ज फ्रॉम मॉनसून है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, मानसून सीजन, नॉन मानसून सीजन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, सो रिचार्ज फ्रॉम रेनफॉल, रिचार्ज फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि बताया मैंने कनाल, ग्राउंड वाटर इरिगेशन, टैंक्स एंड पॉन्ड्स। ठीक है, सो तो क्या होता है, करीब यहाँ पे जो यूनिट है इसका वो हेक्टेयर मीटर होता है, क्योंकि एरिया को हम लोग हेक्टेयर में कंसिडर करते हैं, और जो वॉल्यूम है वाटर जो क्या बोलते हैं रेनफॉल का जो अमाउंट है दैट इज इन mm, सो उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जो यूनिट बनता है इसका वो हेक्टेयर मीटर होता है। ठीक है, सो ग्राउंड वाटर जो धनबाद में अगर आप वहाँ पे देखो, सो ग्राउंड वाटर का जो सिचुएशन है दैट इज 76% ऑफ स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। सो धनबाद जो है वो क्या है, वो सेमी क्रिटिकल कैटेगरी में आता है। ठीक है, सेमी क्रिटिकल कैटेगरी में धनबाद आता है। ठीक है,
और ओवरऑल अगर आप झारखंड की बात करो तो ओवरऑल आपका झारखंड का जो स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो 27% का है, यानी कि सेफ कैटेगरी में है। सो झारखंड में ग्राउंड वाटर को रिलेटेड उतने इश्यूज नहीं है क्योंकि वो सेफ कैटेगरी में है, और धनबाद में थोड़े से इश्यूज हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा एक्सट्रैक्शन है, सेफ से कैटेगरी से ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद ये आप एक कंपेरेटिव मैप देख सकते हो कि 2009 का एक्चुअली ये डेटा है, पुराना थोड़ा डेटा है। जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट 2009 में था वो 52% था। सो आप देख सकते हैं कि करीब 8 साल में कितना आपका रिसोर्सेज चेंज हो गया। 8 साल में आपने 52% से बढ़कर 76 के आसपास आप आ गए हैं। सो ग्राउंड वाटर को आप तेजी से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, इस वजह से स्टेज ऑफ एक्सट्रैक्शन आपका बढ़ गया है। अलग अलग यहाँ पे हर ब्लॉक का आप देख सकते हो रिसोर्सेज यहाँ पे दिखा रहा है। सबसे ज्यादा आपका धनबाद में जो है हाँ, सबसे ज्यादा आपका धनबाद में आप देख सकते हो 92% का एक्सट्रैक्शन है ग्राउंड वाटर का। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे झरिया पे भी काफी एक्सट्रैक्शन ज्यादा है। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कोलफील्ड आपका जो है एरियाज वो है, यहाँ पे माइंस के थ्रू जो नेचुरल डिस्चार्ज बना रहता है, ठीक है, वो ग्राउंड वाटर से निकल के जो माइंस में है उनमें भरते रहता है, या फिर जब माइनिंग करते हैं उस समय काफी पानी जो निकलता है अंडरग्राउंड, उसको हम लोग हर निकाल के उसको कहीं सप्लाई करते हैं या कभी उधर पे रिवर्स में बहा देते हैं। तो उसके वजह से इन जगहों पे आपको ज्यादा एक्सट्रैक्शन दिख रहा है। लेकिन वही आप अगर टुंडी में देखो तो टुंडी में काफी कम स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है, निरसा में काफी कम है। ठीक है, तो अब अगर टोटल इंडिया की अगर बात करें तो टोटल इंडिया में आप देख सकते हैं कि जो स्टेज ऑफ अलग अलग है यहाँ पे इरिगेशन जो है करीब 11% जो इरिगेशन है वो होता है, सॉरी 11% जो है वो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज में आता है, और जो 89% है वो हम इरिगेशन में यूज करते हैं इंडिया के रिसोर्स में। ठीक है, और उसी तरह का डिस्चार्ज कंसिडर करो, टोटल नेचुरल डिस्चार्ज जो कि 9% हम कंसिडर करते हैं, और जो एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स है वो बस 91% है। और यहाँ पे अगर आप अलग अलग रिचार्ज फैक्टर्स को देखो या रिचार्ज फ्रॉम रेनफॉल देखो, फ्रॉम अदर सोर्सेज देखो, ये भी सारा आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। तो सबसे ज्यादा आपका जो रिचार्ज होता है वो रेनफॉल के थ्रू होता है 58%। उसके बाद अगर आप देखो अदर सोर्सेज से है 15%, फिर रिचार्ज फ्रॉम नॉन मानसून वो 18% है, और रिचार्ज फ्रॉम अलग अलग यहाँ पे दिखाया हुआ है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट वाइज ग्राउंड वाटर रिचार्ज कंपोनेंट ऑफ इंडिया, ये 2017 का है। ठीक है, अगर इसमें आप देखो ये झारखंड का, तो ये जो ब्लू बार है ये आपका क्या बताता है, रिचार्ज फ्रॉम रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून। तो झारखंड में आपका क्या है, रेनफॉल रिचार्ज बहुत ज्यादा है, मतलब 90% से जो रिचार्ज होता है झारखंड में दैट इज फ्रॉम रेनफॉल। उसके बाद जो येलो वाला आपका है रिचार्ज फ्रॉम अदर सोर्सेज है, मतलब काफी कम है, 1-2% के आसपास अदर सोर्सेज से रिचार्ज होता है। फिर जो ग्रीन कलर का है जो कलर रिचार्ज फ्रॉम रेनफॉल ड्यूरिंग नॉन मानसून, तो नॉन मानसून भी काफी कम होता है धनबाद में, और रिचार्ज फ्रॉम अदर सोर्सेज ड्यूरिंग मानसून ये आपका रेड कलर में। बाकी जो टैंक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए उनका। अब ये इरिगेशन को बता रहा है, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल जो यूज है ये तीनों को कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे। सो इंडस्ट्रियल और जो डोमेस्टिक यूज है उसको एक साथ क्लब करके येलो कलर दिया गया है, और जो इरिगेशन है उसको ब्लू कलर दिया गया है। सो झारखंड में अगर आप देखो तो करीब 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन है, 50% इरिगेशन में जा रहा है, 50% डोमेस्टिक और उसमें जा रहा है इरिगेशन। ठीक है, ये आपका एनुअल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स है इंडिया का। आप देख सकते हैं यूपी, बिहार, बंगाल आपको काफी अच्छा कलर, ब्राइट कलर दिख रहा है, मतलब कि आपका जो अवेलेबल रिसोर्स है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, और ये इन जगहों में बाकी आपके थोड़े कम कम रिसर्व्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो कलर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप रेड कलर जो देख रहे हैं ये सारे ओवर एक्सप्लॉइटेड एरियाज हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो धनबाद का भी यहाँ पे छोटा सा दिखेगा, तो वो ओवर एक्सप्लॉइटेड था 17 में, इस वजह से उसको कंसिडर किया गया था। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो येलो कलर्स है वो क्रिटिकल एरियाज हैं, जो ये ग्रे कलर के वो सेफ एरियाज हैं, और जो ग्रीन में है वो सलाइन एरियाज जो कि गुजरात में बहुत जगहों पे मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं। ठीक है, और बस, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको क्वेश्चंस हैं तो आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। Thank you, sir.
as the participants are here with full of vigor, passion, energy, excitement, and enthusiasm. So let's start with the question hour. I now hand over to the participants for the questioning. Yes, sir. My name is Gaurav Kumar Roja, and I have one question. So my हाँ question, गौरव, sir, how climate change is impacting underground water? So how climate change is impacting underground water nowadays? Because ओके climate ओके, is a hot burning issue. That's why I want to ask this question, sir. नहीं नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारा, नाइस क्वेश्चन। इसमें देखो क्या है, क्लाइमेट के हिसाब से अगर क्लाइमेट हम देखें तो रेनफॉल पैटर्न काफी बदल रहा है अभी, ठीक है। अगर थोड़ा हम आज से 20 साल पहले जाएं या और पहले 30 साल का देखें रेनफॉल का पैटर्न, सो रेनफॉल कंटिन्यूस होता था और इंटेंसिटी उसकी कम होती थी, ठीक है। वो रेनफॉल 40 दिन का ना होकर वो 60 दिन का होता था, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा बारिश हर दिन, कुछ बारिश हुआ, जो हर दिन का रिकॉर्डेड जो बोलते हैं ना रेनफॉल का, वो हर दिन कुछ कुछ अमाउंट में होते रहता था। लेकिन अब क्लाइमेट पैटर्न से क्या होता है, पूरा जो विंड सर्कुलेशन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। और जो मानसून का अराइवल है वो कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा मतलब अमाउंट में हो रहा है। सो उसके वजह से क्या हो रहा है, इंटेंसिटी काफी ज्यादा बदल रहा है रेनफॉल का। अगर सपोज एक दिन में जहाँ 10 बारिश होता था, वहां पे 100 बारिश हो रहा है, तो जो सॉइल का जो कैपेसिटी है ना इन फिल्टर करने का वाटर को, वो स्टैग्नेंट है, वो तो बस एक अमाउंट ही स्टोर कर पाएगा, ठीक है। मान लो 10 का रेनफॉल है, उसमें वो कंसिडर करो 2 ही इन फिल्टर अगर होता है, ठीक है। वहां 100 बारिश हो जाएगा तो 98% तो तुम्हारा रन ऑफ चला गया, ठीक है। वो पानी बह के नाली में चला जाएगा, नदी में चला जाएगा, वो रिचार्ज नहीं होगा। सो क्लाइमेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है ग्राउंड वाटर के एस्टिमेशन में या रिचार्ज में। अगर क्लाइमेट हमारे फेवर में नहीं रहता है, क्लाइमेट जो है ड्रास्टिकली चेंज करते जाता है, तो ग्राउंड वाटर रिसोर्स भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होगा। Thank you, sir. आई थिंक, Thank you, sir. ओके, वेलकम। One question from me, sir. Sir, how this climate जी, is changing due to the natural disasters, the phenomenon that are occurring in the recent years? ओके, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन काफी मतलब बड़ा डिबेट वाला टॉपिक है ना। सो काफी सारे इसमें फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं। जैसे कि अगर आप देखो तो जो हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, या फिर जो ग्लोबल आइस कैप जो हमारे मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, सो ये सब एक कंबाइंड इफेक्ट करते हैं, किसी एक इंडिविजुअल फैक्टर को आप कंसिडर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। सो मल्टी फैक्टर्स इसमें है। ये मतलब बहुत ज्यादा डिबेट वाला टॉपिक भी है कि बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं, दिस इज बीइंग अ जियोलॉजिस्ट, आप तो बोलोगे कि अलग अलग आइसेज आते जाते हैं, उसके बाद एक नॉन आइसेज पीरियड भी रहता है। सो ऐसा है कि वो अलग अलग फैक्टर्स उसमें इंक्लूडेड हैं बहुत सारे। So, can you explain a little more about this? Not more than so lengthy, sir. Just हाँ few हाँ, words about that. आप किसके बारे में सुनना चाहते हैं, एक बार फिर से बताइएगा। सर, जो मैंने जो क्वेश्चन पूछा सर उसके रिगार्डिंग कि क्लाइमेट इफेक्ट जो हो रहा है सर, ये नेचुरल डिजास्टर्स के हाँ कारण, फिनोमेना के कारण, जो रिसेंट ईयर्स में हाँ सर बहुत हाँ सारे चेंजेस आए हैं वेदर कंडीशंस में, तो ये हाँ मतलब फैक्टर्स जो मोस्ट प्रोबेबली करते हैं हाँ इफेक्ट हमारे क्लाइमेट को। हाँ, पहला पहला तो आपका जो है वो टेम्परेचर वेरिएशन हो गया, ठीक है। जो आपका ग्लोबल टेम्परेचर है वो हर साल हर कुछ समय में वो बढ़ रहा है, ठीक है। ग्लोबल टेम्परेचर अब क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन एमिशंस जो है वो बढ़ रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो जो रिलेटिव अमाउंट है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का वो घट रहा है, ठीक है। सो इसके वजह से क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो एक फैक्टर है, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या है, जिस तरह से हम लोग अपने जो क्या बोलते हैं रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगर आप ग्राउंड वाटर की बात करो, तो जिस तरह से आप ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हो, तो रिचार्ज आपका बहुत कम हो पा रहा है। आप नए जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर करके वहां पे आप कंक्रीट्स की सिटी बसा रहे हो, ठीक है। आप उस जगह को पेवमेंट में कन्वर्ट कर दे रहे हो, तो आपका रिचार्ज उन जगह से कम हो रहा है। और उसमें क्या है, वो आपका मैक्सिमम फिर रन ऑफ बन जा रहा है वाटर, ठीक है। रन ऑफ बनने की वजह से फिर क्या है कि वो पानी आपका जो खराब हो जा रहा है और फिर आपके ओशंस में जा रहा है। उसके बाद पोल्यूशन, जो आप रिवर बेड्स का पोल्यूशन कर रहे हो या फिर आप ओशंस का पोल्यूशन कर रहे हो,
ठीक है, वो भी एक फैक्टर है, और भी कई सारे फैक्टर्स है एक्चुअली, ठीक है। Okay, sir. Sir, I Sir, have one more question. question. Sir, one more question हाँ related to the topic, sir. Sir, आपने जैसे बताया हाँ सर कार्बन एमिशन is a major affecting to the climate, sir. But this factor is हम्म, relating to the greenhouse gases, and it is a हाँ major part of the chlorofluorocarbons. Sir. Then how the chlorofluorocarbons is affecting the climate in the recent years, sir, by changing the weather? ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर आप देखो तो जो स्प्रे वाले जितने भी प्रोडक्ट्स आते थे पहले, अभी एक्चुअली बैन हो गया है, जो आप डिओड्रेंट्स यूज करते थे पहले, या कोई भी आप जो स्प्रे वाले जितने भी प्रोडक्ट्स आते थे उसमें यूज किया जाता था। सो उसके वजह से क्या होता था, ये रिएक्ट करता था आपके ओजोन के साथ, सीएफसीज, ठीक है। सीएफसीज आपके उसके ओजोन के साथ रिएक्ट करके वो जो आपका क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका के ऊपर जो आपने बहुत पहले सुना होगा कि एक पैच बन गया है जहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही थी, तो एक्चुअली वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है, सीएफसीज का यूज मार्केट में कम हो गया है। बहुत सारे एनवायरमेंट कंसर्न लोग ने इनको बैन करवाने में एक्चुअली बहुत हेल्प किया है। सो सीएफसीज का अब उतना रोल नहीं है मेरे हिसाब से। अभी जो मेजर आपका है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन बहुत एक बड़ा इनपुट सोर्स है, ठीक है। भले आप उसको कंसिडर ना करो, लेकिन कार्बन से मेरे ख्याल से 10-20 गुना ज्यादा इफेक्टिव जो है होता है मीथेन होता है ग्रीन हाउस गैस में, ठीक है। Okay, thank you very much, sir. ओके, वेलकम। Sagar, is it completed? I think, Yes, sir. yeah, we'll proceed. Question answer is going on. Okay. Okay. Sir, I have one question, sir. हाँ जी, जी पूछ रहा था, जैसे अभी बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग जो डेवलप हो रहे हैं उसके वजह से हैंडपंप और हमारे जो वेल जो जिसमें पानी खत्म हो जा रहा है, क्या ये कोई हमारे पास कोई प्रोसेस है कि हम उसमें वापस उसमें पानी फिल कर सके, उस लेवल पर ला सके? ओके, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। एक्चुअली देखिए क्या हो रहा है, सपोज आप एक खेत ले लो, खुला सा खेत है, ठीक है। सो उस जगह पे क्या होता है, जब रेनफॉल होती है ना, तो रेनफॉल के थ्रू पानी इनफिल्टर करके नीचे चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उस जगह पे आप प्लेटफॉर्म बना देते हो या बिल्डिंग बना देते हो, तो पेवमेंट से क्या होता है, वो एरिया कॉम्पैक्ट आपका हो जाता है, और जो बारिश होता है फिर वो इनफिल्टर नहीं कर पाता है। सो एक्चुअली क्या है, CGWB और बहुत सारी जो एजेंसीज हैं जो ग्राउंड वाटर के रिस्पेक्ट में काम कर रही हैं, सबका एडवाइस ये होता है कि जहां आप ऐसी स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, आप जो नेचुरल जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप एक रिचार्ज वेल जरूर उसके साथ बनाओ। अभी ये कंपल्शन आ जा रहा है कि हर जो गवर्नमेंट बॉडीज है उनको रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाना है, जो सिटीज हैं हर जगह पे। तो अगर आप अपने घर में भी एक छोटा सा रिचार्ज वेल बनाओ, तो दैट विल बी अ वेरी इफेक्टिव मेथड टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर। अब इसको रिचार्ज वेल्स को कैसे बनाना है अगर आप पूछो, तो इसको आप एक सबसे इजीली तरीका है, आप 3x3 फीट का एक वो बना लो, क्या बोलते हैं, पिट बना लो, ठीक है। उसमें आप क्या करो कि जो ग्रेवल्स होते हैं, ठीक है, वो सबसे पहले बड़े बड़े ग्रेवल्स डालो आप, फिर फाइनिंग अपवर्ड जो आप बोलते हो ना, फाइनिंग अपवर्ड टाइप का आप उसमें वो बना लो, ठीक है। और फिर उसके बाद जो उस पिट के अंदर ज्यादा गहरा नहीं, 50 मीटर का या 60 मीटर का एक बोर बना लो आप, ठीक है। और जो आपका छत है, घर का जो छत है, उसके थ्रू जो बरसात का पानी आता है वो आप कन्वे करके उस पिट तक लेके आ जाओ, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सस्ता तरीका है, मेरे ख्याल से 50-60 हजार के आसपास इसका एस्टिमेट बनता है, ठीक है। इससे आप हर कोई अपने लेवल पे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर पाएगा, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की आप बात करें तो वो लोग भी इस चीज को अपना सकते हैं। उस केस में जो मल्टीपल बोर्स उसको उनको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो एरिया कवरेज है उनका थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा उनका कैचमेंट एरिया हो जाएगा, ठीक है। जी थैंक यू सर। ओके, So one more question from my side, sir. Sir, हाँ that प्लीज। sir, digging up, sir,
the natural resources that you are digging out, sir, like the coal and the minerals that you are digging out, is also affecting the groundwater level, sir. Then Exactly. how it can be solved, sir? How it can be solved? ओके तो सबसे सिंपल आप कोल को ही देख लो, क्योंकि आप इजीली कोरिलेट कर पाओगे कोल को। तो एक्चुअली क्या है कि जब आप कोल एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है, सो आपका जो ग्राउंड वाटर जो है उसको आप पेनिट्रेट करके आप हो सकता है कुछ केसेस में ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे आप माइन करते जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका कोल काफी गहराई पे होता है, कभी 300 मीटर, कभी 400 मीटर, कभी कभी किलोमीटर नीचे भी होता है। तो आप जो फ्रियाटिक या कन्फाइंड जोन है उसको आप क्रॉस करके नीचे माइन कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप माइनिंग करते हो तो सेफ्टी कंसर्न के लिए अगर आप देखो तो माइंस में वो वाटर फिलअप ना हो, इसलिए वो वाटर आप ड्रेन आउट करते हो, ठीक है। इसको अब क्या कर सकते हैं, इस जो वाटर आप ड्रेन कर रहे हो उस वाटर को आप किसी तरह पॉन्ड के थ्रू या किसी और रिचार्ज मेथड से उसको आप या तो इरिगेशन में आप कन्वर्ट कर दो, वो वाटर को किसी थ्रू डाइवर्ट कर दो आप इरिगेशन में, या उसको आप एक ऐसा मेथड बनाओ जहाँ पे उसमें आप हल्का सा फिल्ट्रेशन उसमें अप्लाई करके उसको ड्रिंकेबल जो पोर्टेबल बोलते हैं उसको आप कन्वर्ट करके जो नियर बाई जो विलेजेस हैं या जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे आप वाटर सप्लाई कर सको। दैट विल बी आई थिंक द मोस्ट गेनफुल यूज ऑफ दैट water from these mining activities. हेलो सर, Yes, मेरा एक sir. क्वेश्चन है, Thank you, sir. सुन पा रहे हैं? जी जी सर, जब हम लोग बोरिंग करते हैं या फिर गड्ढा खोदते हैं तो सर कई बार ये होता है कि उसमें से पानी नहीं निकलता है। हम लोगों का एम होता है कि उससे हम पानी निकालें और यूज करें, बट नहीं निकल पाता। तो क्या इसका कोई मेथड है जिसके थ्रू हम पहले से ही पता कर लें कि यहाँ पे पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा? ओके, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक्चुअली देखिए, जब आप बोर बनाते हैं, ठीक है, ऐसे तो कन्वेंशनल हर कोई जो आदमी है वो इतना साइंटिफिक अप्रोच नहीं रखता है जब बोर बनाता है। वो पता चला वो पंडित के पास चला गया, उसने वो एक नारियल दिया, वो नारियल लेके पूरे फील्ड में घूमता है, ठीक है, और वो बोलेगा कि हाँ यहाँ पे बोर बनाना है। तो ये थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है मार्केट में उसको वो अप्रोच करता है। अगर आप एक बोर बनाना है तो उसके प्रॉपर पहले आप स्टडी करते हो, एक जियोफिजिकल स्टडी होती है, ठीक है, जिसको हम वीएस बोलते हैं, वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग बुलाते हैं उसको, ठीक है। उससे आप अंदर जो जियोफिजिकल मेथड्स होते हैं उससे आप नीचे जो है साइस्मिक उसकी क्या बोलते हैं जो कंडक्टिविटी बोलते हैं, है ना, तो आप कंडक्टिविटी को देखते हो। उस केस में अलग अलग उसमें लेयर्स बनते हो, वो जियोफिजिक्स का एक अलग एस्पेक्ट है। तो आप उससे पता करते हो कि कितने लेयर नीचे आपकी रेजिस्टिविटी घटी है, ठीक है। रेजिस्टिविटी का घटना मतलब हो गया सॉरी रेजिस्टिविटी का बढ़ा है, सॉरी रेजिस्टिविटी बढ़ा है, क्योंकि जो वाटर है वो आपका नॉन रेजिस्टिव होता है, ठीक है। तो जब उसमें मिनरल होते तब वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाता है। तो आपका जहाँ पे रेजिस्टिविटी बढ़ता है वो आपको नोट करना है, ठीक है। उस जगह पे अगर आपको रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स आपको वहाँ पे वाटर अवेलेबल है। ये एक मेथड है। उसके बाद जब आप देखोगे कि बहुत जगह पे फ्रैक्चर्स जो होते हैं उसको देखना है हम लोगों को। अगर आप बहुत ही कॉम्पैक्ट जगह पे आप बोर बनाने चले जाओ तो वहां पे आपको बोर सक्सेसफुल नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा, उसमें पानी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखोगे कि पत्थर जो है चट्टान है उसमें काफी सारे फ्रैक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, काफी वेदरिंग हुआ है, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी है कि उस जगह पे जब आप बोर या डगवेल बनाओ तो उसमें पानी मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके I think there is no more question so far, and Sir, now one question. I would like to request one more question. Okay, this is the last question. Okay. Yeah. Sir, one question is that, sir, in today Okay. time the underground Yes, water is depleting. The underground water is depleting day by day. So, yes. sir, when the country which are like Saudi Arabia and many other countries based there are desert. So, sir, why this type of technique to store groundwater can be implemented in India also? एक्चुअली सऊदी अरब और ये सारे डेवलप कंट्रीज इनके पास तो वाटर रिसोर्सेज है ही नहीं, ये तो डिसैलिनेशन पे चल रहे हैं, है ना। इनके पास वाटर रिसोर्सेज जो है दैट इज वेरी लेस।
ठीक है, एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया के पास काफी ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, ठीक है। सो जैसे कि आप इजराइल को देख लो, ठीक है, that is mostly using desalinated water in their irrigation activities. ठीक है Sir, yes, sir. No, now time is 12:30. Now I would like to request our principal sir, it's moment to Ankit Vishwakarma in virtual mode. Sir. Thank you very much, sir. Sagar ji, try to understand the internet is slow over here in Moravadi actually. Internet is slow. The Jio is not working. It is on the mobile I am working, isn't it? The whole of the webinar that is being conducted through this mobile app, isn't it? You go on, proceed. You give away the memento to the keynote speaker from my side, okay? And my all blessings are with you people. Thank you. Yes. Because of the internet problem, I'm unable to join now. Yes. Okay. Yes, sir. Okay, this is So from on my behalf, please give memento to Ankit ji. Thank you very much, sir. Now we'll go to water tanks, I think. And finally, I would like to tell to our honorable principal sir, and for giving his valuable time with us and spare valuable time with us. So I would like to thank him. Then I would also like to thank our speaker Ankit Vishwakarma for taking out his valuable time and spare time with us. Our students will get enriched groundwater knowledge about groundwater resources, and I would be thankful to him. And also in future, I'll tell him anytime he also can give some as he is the alumnus of our college, and very grateful to him. And also lastly, I would also thank to all the students who have participated. Without them also these events cannot. And also the students are from not only from our college but from MK University, then Hazaribagh University, then I think somewhere also from Odisha also, I think some college also will get participated in this event. I'll thank to all these students who have participated. I think this event will they'll get enriched with knowledge after this webinar. And I'll look forward to all of you. And here I will end this. So once again, I would once again thank you, thank to our principal sir, Dr. Brij Kishore Sinha sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. This effort, I mean, but with to a bring request, but with a request but with a request, you must rather you should come over to the college and sure, sir, sure. Join information of alumni association of the college, isn't it? Sure, sir. I'll come whenever I visit my hometown. After this My COVID and all hometown is that. very sure, sir. Sure. We'll be sure doing this. And right, okay. try to strengthen our geology department, and in fact take the name of P. K. Roy Memorial College quite high in the region. Actually, P. K. Roy Memorial College is the only college which serves as geology. Okay. So thank you, sir. Thank you very much. And thank you. Once again, Sagar Spencer also. Thank you very much.
I would like to leave now. Sagar, I would like to leave now. Okay, sir. Okay, thank you. You just to promise Thank you, that all students, those who have joined over here, they will get the e-certificate. Get prepared, get a clearance for me, and give all the students have the signatures, electronic signature of Ankit, and issue the e-certificates to all students, those who have participated in this webinar, isn't it? That will be a nice thing, right? Okay. Yes. Okay then, I'm leaving. I've Thank you, just sir. got some Thank you. other jobs also. Okay, thank you. Thank you. थैंक यू। देन हम लोग यहीं पे मीटिंग को एंड करते हैं फिर। Sure, sir. Thank you once again. या